So welcome you all to the training session on IS 9001 2015 Internal Auditor. It's the session 11, and in today's session, after the clause of confidentiality, we will go through questioning techniques. That is, what type of questions can be asked during the audit, because ultimately you need to ask certain question, you need to interact with the people, you need to observe the process also, but questioning is also very important. So what type of questions are there, we will go through that. Methods or ways of collecting information, because as we have seen, you have to collect the audit evidences, and for collecting that audit evidences, it is nothing but a information. So how you can collect the information, by what ways you can collect the information. Then conducting the interviews, how you are going to conduct the interviews, because again auditing is interacting with your auditee. So during that you may require to interview some people, some auditee there, the subordinates or the people who are working on the machine. So how you will conduct the interviews, we will see there. Then I will show you the audit observation sheet and how we can prepare the auditing checklist. Apart from the turtle diagram, how we can do the audit through the checklist also, that we will see today. Today we are not going to touch the turtle thing. Turtle thing we will start on Monday again. So clause of confidentiality, as we are telling you at the start of every session, the training content is of proprietary nature. Do not share any part in full on any of the public platform, nor to your connection. Share the knowledge, do not share the contents directly. Now auditing, and what are the various questions types. So the question types can be open type questions, close-ended question, probing questions, leading questions, and hypothetical questions. Apart from that, there can be many more, but we will focus to start with on these only. And as you gain the experience during the auditing, you will start asking the various kinds of question on your own, but these are the basic kinds of question one should know. और वो कहाँ पे पूछना है, that is very important, because auditing जो होना है, ultimately you are interacting with the people when you ask the question, so you should not make the people uncomfortable at the start only. So how we can do the auditing effectively, that depends on how you interact with the people also, how you gather the information also. So information can be gathered through the questioning also. So it is very, very important of choosing a right question at the right time. Even a right question at the wrong time cannot give you insights into the process. You may not find anything. Now open questions. It can be like 5W 1H type questions, like what, where, when, which, who, and how. For example, if you are auditing a training process, you cannot directly ask them, can you please show me the say competency of this person so and so. You should not start with that, because it is a either it is a yes type or it will be a no type. Either वो बोलेंगे कि नहीं उसके लिए मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, या फिर वो आपको दिखा देंगे, फिर आप उनको पूछोगे कि आप कैसे करते हो. देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस. दैट शुड नॉट बी द अप्रोच. फर्स्ट आपको उनकी प्रोसेस को समझना भी है ना. दैट डजंट मीन कि आपको पूरा दिन उसके अंदर ही डालना है, बट पहले आप पूछ सकते हो उनको कि हाउ यू मैप द कॉम्पिटेंसीज, तो वो बताएंगे, फिर आपको खुल के बताएंगे. सो व्हाट विल हैपन, दे विल ओपन अप, है ना, दे विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग. और अगर आपने स्टार्ट से ही ऐसे क्वेश्चन शुरू कर दिया जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में है, तो क्या होगा, देयर इंटरेक्शन विल बी लिमिटेड. एक लिमिटेड टाइम के लिए इंटरेक्शन हो जाएगा, and then they will start hiding something from you. They will not open up about their process, their products, or their system. So that is why it is very important to start with a open-ended question, but not necessary. Again, I am telling you, there is no say
रिक्वायरमेंट गिवन इन द ISO 9000 और इवन ऑडिटिंग की इससे ही शुरू करना है, अगेन इट्स अप टू द ऑडिटर. हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है ऑडिटिंग का. whatever way you can make the audit effective, you can follow that way. But as a thumb rule, or you can say based on certain experiences, I can say that yes, you should start with a open-ended question so that you can make people comfortable. Like how you map the competencies, you know, who all are involved in making the competencies. तो उससे क्या होगा कि you are not directly going and pinpointedly started finding the faults. आप अभी गैदर कर रहे हो इंफॉर्मेशन कि आप मैप कैसे करते हो कॉम्पिटेंसीज को, कौन से लोग इन्वॉल्व है उसमें, है ना, वेयर यू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द कॉम्पिटेंसीज, है ना, व्हेन यू आर रिव्यूइंग द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द पीपल, है ना, वेयर यू डिस्प्ले द कॉम्पिटेंसीज इफ एट ऑल रिक्वायर्ड, टू whom ऑल यू कम्युनिकेट द कॉम्पिटेंसीज. ये क्या होता है कि इससे आप उनको कंफर्टेबल करते हो दिस क्वेश्चन. सो जो 5W1H टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन say that okay, it is basically to make the auditee comfortable, and these are called open questions. Then comes close ended questions, जिसका आंसर होता है yes or no, either yes या no, बीच की बात नहीं रहती है ना. like do you map the competencies, आंसर आएगा yes we map the competencies or we don't map the competencies, है ना. like do you conduct the internal audit, so आइदर आंसर आएगा कि नहीं हम नहीं करते, या आएगा कि यस हम करते हैं, है ना. हैव यू प्रोवाइडेड द इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर द मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग, आइदर उसका आंसर आएगा यस और नो. ये तो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं सर कहीं कहीं पे किया है कहीं कहीं पे नहीं करते हैं. सो बेसिकली इससे क्या होता है, इंटरेक्शन एंड हो जाता है, बट इससे आपको एक डेफिनेट आंसर भी मिलता है. तो कहाँ पे यूज करना है, कब यूज करना है, दैट you will come to know when you start auditing your internal process. आपको पता है कि मुझे अब यहाँ पर इसको क्लोज करना है. तो एक फनेलिंग टेक्निक है, that will also I will share with you, है ना, in the next slides. तो ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मींस उसके बाद फिनिश, है ना, उस पर्टिकुलर इस पे. हाँ आप डेफिनेटली आगे कर सकते हो कि अगर उन्होंने बोला कि डू यू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, उन्होंने बोला यस, देन यू कैन आस्क शो मी, है ना, देन स्टार्ट योर क्वेश्चन लाइक शो मी क्वेश्चंस. Then comes the probing questions. I hope the screen is visible to you where I am showing the probing question, all types of questions. You know, whatever we are discussing is based on the presentation. So probing questions. It is why type questions. So इससे आप प्रोब करते हो उनके ऊपर, आप उनकी कार्यशैली के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हो वहां पर, है ना. इट इज वाई टाइप क्वेश्चन. Why have you not considered the new recruit in the skill matrix? तो आपने उस मैटर को प्रोब कर रहे हो आप, क्योंकि आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई है, उसके बेस पे आप प्रोबिंग कर रहे हो, है ना. यू कैन से ओके व्हाई यू हैव केप्ट इंटरनल ऑडिटिंग once in a year. It is basically because you have come to know that yes the frequency is once in a year. Now you can you are probing why you have kept, though there is no definite period given in the ISO 9001, but still you can probe. It is not necessary कि आपका हर एक क्वेश्चन जो होता है ड्यूरिंग द ऑडिट वो कोई ना कोई स्टैंडर्ड से रिलेटेड ही रहे, है ना. यू आर बेसिकली गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, तो उसके बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द ट्रैक भी जा सकते हैं, नॉट टू मच, है ना, बट समथिंग कैन गो, नो इश्यू एट ऑल. अल्टीमेट एम इज यू आर रीचिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, है ना. आप उनको अगर पूछते हो कि व्हाई यू हैव केप्ट वंस इन ईयर, तो अगर उनका आंसर प्रॉपर होना चाहिए ना कि यस वी हैव अर्लियर द फ्रीक्वेंसी वाज हाई, नाउ as our system has matured we found that okay even when we conduct the internal audits once in a 6 months we are not finding that much of the norm conformances, people are working, and secondly we are reviewing the system by way of quality objectives and management review meetings in between. That's why we don't need to conduct the internal auditing more frequently. That's why we have kept it once in a year. So that kind of answer they can give. And वो जो आंसर आपको मिला हुआ है
आपको देखना है कि क्या वो आप जब ऑडिटिंग कर रहे हो आपको अगर बहुत सारी नॉन कन्फर्मेशंस मिल रही है, इसका मतलब ये जो उनका स्टेटमेंट था कि दे हैव इंक्रीज इट बिकॉज देयर आर नो नॉन कन्फर्मेंसेस, इसका मतलब उनका ऑडिटिंग जो है इट इज नॉट इफेक्टिव। अब आप कहां पे जाओगे? देन यू विल स्टार्ट चेकिंग कि आप किसको ऑडिटर बनाते हो, फिर ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, उनके सर्टिफिकेशंस, है ना, उनकी उनकी क्या, व्हाई यू आर गिवन दिस जॉब टू दैट पर्टिकुलर ऑडिटर। इवन यू कैन इंटरव्यू द ऑडिटर ऑल्सो, योर इंटरनल ऑडिटर्स, आप उनको भी इंटरव्यू कर सकते हो। यू कैन आस्क फॉर द इंटरनल ऑडिटिंग रिकॉर्ड्स ऑल्सो, और उसमें अगर आपको ये दिखता है कि इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवली नहीं की गए हैं, सो उनका जो था कि उन्होंने 1 साल की फ्रीक्वेंसी रखी है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अल्टीमेटली आप इसके लिए नॉन कन्फर्मेंस नहीं दे सकते हो कि दे हैव केप्ट द फ्रीक्वेंसी वंस इन ईयर। व्हाट यू कैन डू that yes, the internal audits are not effective, and then you can give the suggestion also. You can always give the suggestion as an auditor, opportunity for improvement. You can include, you can increase, you can give them suggestion that please increase the frequency of auditing because we are finding so many issues. Got it? So basically you are probing, है ना। अगर आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर इसमें प्रोडक्ट में, आपको कहां से पता चलता है? अल्टीमेटली ऑल प्रोसेसेस आर इंटर रिलेटेड। प्रोसेस अप्रोच में आप एक बात देखना, प्रोसेसेस आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, आपको उनको स्टैंड अलोन नहीं समझना है। किसी पर्टिकुलर ऑडिट के लिए आपके पास इनपुट कहीं और से आ सकता है ना। तो जब भी हम कभी ऑडिट करते हैं, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट शुरू करना है, तो जो प्लान करते हैं ऑडिट, इस तरह से करना है कि वो जो ऑडिटर है, एक दिन में हम बहुत सारे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक दिन में एक किया तो हो सकता है आपने आज जब प्रोडक्शन का ऑडिट किया, वहां पे 2-4 लोगों के कॉम्पिटेंसी रिलेटेड इश्यूज आपको नजर आए। आपने क्या किया, वो जो इनपुट है वहां से कि इन लोगों के, जो भी ऑडिटर आपका एचआर का ऑडिट करने वाला है, आप उनको उन लोगों के नाम की लिस्ट दे सकते हो और उनको बोल सकते हो कि प्लीज चेक द देयर रिकॉर्ड्स अबाउट द ट्रेनिंग विद द एचआर। कभी कभी हो सकता है इंटरनल ऑडिटिंग में आपको इतना टाइम नहीं हो कि आप इसका ऑडिट करके फिर एचआर में भी उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाओ, तो आप क्या कर सकते हो, ये इनपुट एचआर का जो ऑडिट करने वाले हैं उनको दे सकते हो। आपने अगर एक्सटर्नल ऑडिट्स को क्लोजली वॉच किया होगा तो उसके अंदर आपको दिखेगा ये चीज कि वो लोग एट द एंड ऑफ द डे और इवन इन बिटवीन ऑल्सो द ऑडिटर्स डिस्कस अमंग देमसेल्व्स। जो प्रोडक्शन का ऑडिट करता है, अगर उसको वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट्स के वगैरह, कैलिब्रेशन के वगैरह इश्यूज मिलते हैं, तो व्हाट ही डज, वो हर बार जाके वहां पे सर्टिफिकेट नहीं मांग सकता है। ही कैन टेक द इनपुट कि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आईडी है या नहीं है, उसका कैलिब्रेशन का स्टेटस है या नहीं है, और फिर उस आईडी को लेके वो अलग ऑडिटर के साथ शेयर कर सकता है जो कि कैलिब्रेशन प्रोसेस का ऑडिट करने वाला है। और फिर वो कैलिब्रेशन प्रोसेस वाला जो ऑडिटर है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स चेकिंग, ये एडिशनली चेक करेगा बिकॉज ही गॉट द इनपुट फ्रॉम द अनदर ऑडिटर कि ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट वहां पे यूज हो रहा था और मुझे उसका कैलिब्रेशन स्टेटस नहीं दिख रहा था, कैन यू प्लीज चेक विद द कैलिब्रेशन सेक्शन। तो वो लोग फिर कैलिब्रेशन सेक्शन में यूज करेंगे। अब उस टाइम पे क्या होगा, इट इज अ प्रोबिंग टाइप क्वेश्चन। वहां पे आप उनको बोल सकते कि व्हाई यू हैव नॉट कैलिब्रेटेड माइक्रोमीटर आईडी सो एंड सो, क्योंकि अभी आपका प्रोब कर रहे हो आप वहां पे, है ना। और व्हाई देयर इज नो स्टेटस ऑफ कैलिब्रेशन ऑन दी माइक्रोमीटर आईडी नंबर सो एंड सो, पीएच मीटर सो एंड सो। अब वो आपको बताएंगे कैलिब्रेशन के लोग कि क्या हुआ था। नाउ इफ देयर इज सर्टन मिस कम्युनिकेशन और मिस इंटरप्रिटेशन, दे कैन ऑलवेज करेक्ट कि वो बोल सकते कि नहीं, वो कैलिब्रेशन किया हुआ था बट उसके ऊपर वो आईडी प्रॉपर से डाला नहीं गया या जो भी है ना। अल्टीमेटली इट, अगर उन्होंने काम किया हुआ है एक्चुअल में, तो माइनर लेवल की एनसी हो जाएगी। अगर एक केस में मिलता है, 100 इंस्ट्रूमेंट है उसमें से एक केस में आपको ऐसा मिलता है कि वहां पे कुछ टाइपो एरर हुआ है या उनका मीन्स क्लरिकल एरर है,
ओके, एक्चुअली कैलिब्रेटेड है बट बिकॉज ऑफ सम कलर मिस्टेक इट हैज हैपेंड, तो उसको हम अवॉइड ये कर सकते हो। आप नॉन कन्फर्मर्स नहीं देना है आपको, बट उसको अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट जरूर देना है कि यहाँ पे ऐसी मिस्टेक हुई थी, वो आपको नहीं करनी है। गॉट इट? बट वो आपके इसमें आ जाएगा, वो ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। बट अगर ऐसी चीजें आपको 4-5 इंस्ट्रूमेंट में दिखती है, देन इट्स नॉट अ क्लरिकल मिस्टेक, ओके, इट इज अ मेजर इशू। तो आपको वहां पे नॉन कन्फर्मस इशू करना है। So this is how you will get the input from other auditors also. But normally, let me tell you, in the uh, say working scenario in the organizations, this doesn't happen. है ना, कि ये लोगों ने उनको इनपुट दिया और उन लोगों ने वहां से इनपुट लेके किया, नॉर्मली नहीं होता है, बट होना चाहिए। अगर आपको आपके सिस्टम को इफेक्टिव करना है, एफिशिएंट बनाना है, जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिट के वक्त, है ना, एक्सटर्नल ऑडिट के वक्त जैसे मीटिंग होती है एट द एंड ऑफ द डे, वो लोग अपना जो ऑब्जर्वेशंस थे दिन भर के, वो आपके साथ शेयर करते हैं 10-15 मिनट के लिए, ताकि आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो वो वहां पे क्लैरिफाई करे। सिमिलर वे इंटरनल ऑडिट में भी दिन के जितने भी ऑडिट हुए, जो भी हमारी ऑडिटी और ऑडिटर की टीम्स है ना, पूरे सेक्शंस की, उन्होंने एक जगह पे जमा होना चाहिए, और वहां पर एमआर ने या जो भी कोऑर्डिनेटर है जो इस प्रोसेस को ओन करता है, ऑडिटिंग प्रोसेस को, जो कि इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंडक्ट करा रहा है सब लोगों से, उन्होंने इस चीजों को सबके साथ बताना चाहिए कि देखिए यहाँ पे ऑडिट हुआ है, ये ऑब्जर्वेशंस है, और ये जो बाकी बचे हुए ऑब्जर्वेशंस है, हम ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में उसको यूटिलाइज करेंगे, चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी का ऑडिट हो रहा है, ओके, क्यूसी का ऑडिट हो रहा है, बट वहां पे जो रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेम्परेचर वगैरह है, अब उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसी और की है ना। क्वालिटी वालों का काम है कि यस उसको अपकीप होना चाहिए, बट उसका शेड्यूल बना कि नहीं बना, कब उसका ये हुआ था, मेंटेनेंस हुआ था, कब उसका अपकीपिंग किया गया था, वो डाटा तो आपको मेंटेनेंस सेक्शन में जाके देखना पड़ेगा। अब ऐसा तो ही नहीं कि आप क्वालिटी का ऑडिट कर रहे हो और बीच में उठ के आप फिर मेंटेनेंस में जाओगे और उनको बोलेगे कि मुझे उस मशीन का मेंटेनेंस का दिखाओ। नो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। कुछ कुछ डाटा देख सकते हो आप जो रेडीली अवेलेबल रहता है, बट नॉर्मल केस में फिर आपको इसको पॉइंट डाउन करना है। अगर आप ही उस चीज का ऑडिट करने वाले हो मेंटेनेंस का नेक्स्ट डे, तो ओके, आप उसको वहां पे चेक कर लो। नॉट ओनली दैट थिंग, अपार्ट फ्रॉम चेकिंग अदर थिंग्स, अदर मशीन्स के बारे में वगैरह, उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल, उनके एक्चुअल वर्किंग सब देखने के बाद में आप इस चीज को भी वहां पे वेरीफाई करना है आपको कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस कब किया गया है, क्या वो मेंटेनेंस शेड्यूल में है या नहीं है। सो दिस इज हाउ यू पीपल शुड इंटरेक्ट, ऑडिटर शुड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इसीलिए इंस्टेड ऑफ हैविंग 10-20 ऑडिटर्स, है ना, नॉर्मली क्या करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड नंबर ऑफ सेक्शंस, ओके, बिकॉज इवन नंबर ऑफ सेक्शन कुछ कुछ जगह पे आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। जैसे अगर इफ इट इज 100 एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन विथ अराउंड 6-7 सेक्शंस, सभी पकड़ के, है ना, तो अराउंड 2 से 3 ऑडिटर में काम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ क्रॉस नहीं होने चाहिए ऑडिटर, है ना, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, इसलिए मैं 2 से 3 की बात कर रहा हूँ। इवन 200 पर्सन तक भी, अगर एम्प्लॉयज 200 है, तब भी आपका 2 से 3 में हो जाना चाहिए। एज वेल एज यू नीड टू चेक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस, कितनी कॉम्प्लेक्स है। ज्यादा जब हम 500-600 ऑडिटर, अच्छा 600 की स्ट्रेंथ पे पहुंच जाते हैं, एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो अलग अलग सेक्शंस है, तो आपको मैक्सिमम 7 से 8 तक ऑडिटर हो जाने चाहिए वहां पे, इससे ज्यादा मत रखिए। एक एक ऑडिटर से 2 या 3 प्रोसेस करवाइए ग्रुप ऑफ, उससे क्या होगा, क्योंकि वही ट्रेल बेस करेंगे, यहां से निकाल के ट्रेल वो सेकंड ऑडिट में जाएंगे। आपको पता है कि जब प्रोडक्शन का जो ऑडिट करता है उससे क्वालिटी का भी करवाइए, है ना। चूज ऐसे कीजिए लोग कि जो इसमें अभी क्रॉस मत कीजिए ना, क्वालिटी वाले से प्रोडक्शन का करा लिया और प्रोडक्शन वाले से क्वालिटी का करा लिया। व्हाट विल हैपन इन सच केसेस, अगर क्वालिटी वाले ने प्रोडक्शन का किया, उसने 4 चीजें निकाली है गलत, या फिर कभी कभी क्वालिटी वाले को जो प्रोडक्शन की चीजें रहती है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन वगैरह, वो क्या करेंगे, उसको
नहीं फोकस करेंगे, दे विल नॉट फोकस, क्योंकि उनको पता है उसमें उनकी गलती मिल जाएगी, वो किसी और चीजों के लिए प्री बायस माइंड से जाएंगे। तो अवॉइड कीजिए ऐसे वक्त प्रोडक्शन का ऑडिट जो है वो मेंटेनेंस की टीम से करा लिया, या कभी मिक्स रखिए, मेंटेनेंस प्लस क्वालिटी रख लिया। नहीं तो मेंटेनेंस के लोग जाके करेंगे उनका, तो अगेन मशीन रिलेटेड जो इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो इश्यूज है, वो हाईलाइट ही नहीं होंगे। ठीक है ना? तो क्या करना है आपको, ऐसा मिक्स ये करना है, चूज करना है कि ऑडिट जो है इम्पार्शियली हो और इफेक्टिवली हो। अगेन आई एम टेलिंग, क्वालिटी ने अगर प्रोडक्शन का करते हैं ऑडिट, तो इट इज नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नॉन कन्फॉर्मेंस बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। इसके अंदर इम्पार्शियलिटी नहीं है, ऐसे वो नहीं बोल सकते हैं। बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमको ये सोचना है कि हमारे ऑडिट को अगर हमको इफेक्टिव करना है, तो ऐसे ऑडिटर्स को चूज करना है, ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करना है जो ऑडिटर्स को, जो हमारे ऑडिट है वो इफेक्टिवली हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बीच में छुपी ना रहे, है ना? ऐसे लोगों को हमको चूज करना है, ऐसे सेट ऑफ ऑडिटर्स को हमको चूज करना है। और इफ पॉसिबल वंस इन ए ईयर इन बिटवीन, जैसे आपका सर्विलेंस ऑडिट होता है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ड्रिवन है, तो ये हमारा ऑडिट हुआ सर्टिफिकेशन ऑडिट। फिर आपका एक सर्विलेंस ऑडिट होता है वंस इन ए ईयर, है ना? सर्विलेंस 1 एंड देन सर्विलेंस 2 एंड देन अगेन रिसर्टिफिकेशन होता है। फिर ये हर साल बाद होता है ना? अब आपको क्या करना है, जब आपका सर्टिफिकेशन ऑडिट हो, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप इंटरनल ऑडिट तो करते ही हो, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। बट क्या करना चाहिए, अराउंड इन बिटवीन मीन्स अराउंड 6 मंथ, है ना, 6वें महीने में एक्सटर्नल किसी कंसल्टेंट से, किसी जो जानकार व्यक्ति है, ऑडिटर लोग है, इम्पार्शियली आपको उनसे ऑडिट करवा लेना चाहिए। हाँ, अगर आपकी कंपनी में आपके कस्टमर्स के ऑडिट होते ही रहते हैं, हर 2-3 महीने में कस्टमर्स आते हैं आपके और ऑडिट करते हैं, देन देयर इज नो नेसेसरी, एक्सटर्नल की किसी की जरूरत नहीं है ना? वो आपके जो कस्टमर्स आते हैं उसमें ही आपका सिस्टम फिर अच्छा खासा मेंटेन रहता है। बट अगर नहीं है ऐसा सिनारियो, सो डोंट वेट फॉर सर्विलियंस ऑडिट फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंसी। 6-7 महीने में एक बार बाहर से करवा लीजिए, ताकि जो भी इनपुट्स मिले, क्योंकि आप एक थर्ड एंगल से, है ना, एक अनबायस्ड व्यू से आप उस चीजों को देखते हो, तो आपके पास कुछ इनपुट्स मिलते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। सिस्टम के अंदर कुछ खामियां रहती है, वो हमको पता चलती है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक एक्शन। तो जो हमारा सर्विलियंस वन होता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटिंग ऑडिटर्स की तरफ से, वो आप थ्रू कर जाओगे अच्छे इससे। सिमिलरली जब सर्विलेंस 1 हो गया, अगेन आफ्टर 1 ईयर सर्विलेंस 2 विल कम। अगेन 6वें-7वें महीने में एक बार आप आपका ऑडिटर, आपका जो ऑडिट है वो करवा लीजिए। अगेन इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, इट डिपेंड्स ऑन हाउ सीरियसली योर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, कितना आप ये समझते हो, सीरियसली लेते हो। नाउ थर्ड, लीडिंग क्वेश्चन। बेसिकली व्हेन वी लीड द क्वेश्चन, जैसे हमने देखे होंगे, आपने अगर देखा होगा कोर्ट के जो मैटर्स होते हैं उसके अंदर आता है ना, यू आर लीडिंग माय विटनेस, है ना, और यू आर लीडिंग माय क्लाइंट। तो वो क्या करते हैं, उनको मजबूर करते हैं, है ना, या इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि आप वहां पे, आपका जवाब जो रहता है वो लीड करते हैं जिस तरह से उनको आंसर चाहिए रहता है ना। सो दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग द ऑडिटी to answer in a particular way, and it is basically asked to confirm the understanding. Now कोर्ट में कुछ अलग तरीके से करते हैं लोग, क्योंकि उनका पर्पस रहता है कि उसको अगले वाले को फॉल्टी बताना है या ना ये करना है ना, उनको साबित करना है कि वो गिल्टी है, या फिर किसी का ये रहता है कि उसको साबित करना है कि वो गिल्टी नहीं है, इसलिए वो लीड करते हैं। बट ऑडिटिंग में वैसा नहीं है, हमको किसी को गिल्टी या फॉल्टी नहीं करना है। हमको क्या चाहिए, वी वांट कि जो अंडरस्टैंडिंग है ऑडिटिंग की और हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इज इट वी आर वेदर वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म और नॉट, है ना, क्या हम सेम प्लेटफॉर्म पे है, वो देखने के लिए हम ऐसा करते हैं वहां पे, है ना, टू फाइंड द फैक्ट्स नॉट द फॉल्ट, आवर पर्पस। सो आपने
इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ सकते हो कि whenever the changes happen in the customer requirement, how you communicate the same design same to the how you communicate the same to design and production section. अब क्या होगा, आपको आंसर चाहिए किस तरह का. आपने ये नहीं बोला कि आप कैसे चेंजेस कम्युनिकेट करते हो, आपने क्लियर कट बोला कि कस्टमर के तरफ से या कस्टमर के रिक्वायरमेंट में कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो आप डिजाइन और प्रोडक्शन को कैसे बताते हो. आपने क्लियर कट बोला कि डिजाइन एंड प्रोडक्शन को कैसे बताते हो. तो आपको क्या चाहिए आंसर, हाँ, कि जब भी कब चेंजेस होते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट में तो वो डिजाइन वालों को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, प्रोडक्शन को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसका आंसर चाहिए आपको. तो बराबर आपने उनको लीड कर दिया क्या वो इसी प्रकार से आंसर दे, है ना. एक होता है क्वेश्चन कि आप कैसे आपकी जो जैसे आप ओपन क्वेश्चन में होता है, हाउ यू आर इंश्योरिंग दैट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर अवेयर अबाउट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. एक तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया. अब उसमें क्या होता है, वो पूरी कहानी बता देगा आपको, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम 3 महीने में ट्रेनिंग कराते हैं, हमने यहाँ पे डिस्प्ले करके रखी है, हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को डिस्प्ले करते हैं, ट्रेनिंग कैलेंडर बनाते हैं. तो इससे आउटपुट कुछ नहीं निकलना है, बट यू आर मेकिंग हिम कंफर्टेबल. अब आप उसको बाद में जब कभी उसको फनेल थ्रू वगैरह जो टेक्निक थ्रू हमने गए और बाद में आपने उनको पूछ लिया कि व्हेन द न्यू पर्सन आर रिक्रूटेड, जब कभी नए लोग आते हैं, हाउ यू आर इंश्योरिंग दैट दे आर गिवन अवेयरनेस ट्रेनिंग. अब क्या हो गया, अब अगर उनके इतने बड़े भाषण में यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन में उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया होगा, नाउ यू आर पिन पॉइंटेडली सेइंग कि नए पर्सन जब रिक्रूट करते हैं तो कैसे आप इंश्योर करते हो. अब उनको क्लियर कट बताना पड़ेगा ओनली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज न्यू पर्सन, अवेयरनेस ऑफ द न्यू पर्सन. अब उनको बताना पड़ेगा कि देयर इज अ इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर है तो, है ना. एंड हर जब हमको रिक्रूट करते हैं दे आर ऑन अ प्रोबेशन, 6 महीने के बाद हम कुछ हमारे ये है पैरामीटर्स है, अपार्ट फ्रॉम द देयर वर्किंग, देयर पंक्चुअलिटी, देयर सिंसियरिटी, देयर नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, अपार्ट फ्रॉम दैट there is one section related to the awareness about the quality management system also. हम इन सभी पैरामीटर्स पे उनको चेक करते हैं और इसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि यस हमारे जो न्यू रिक्रूट्स है वो प्रॉपरली ट्रेंड है अबाउट द अवेयरनेस अबाउट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. अब अगर इस तरह से आंसर है तो अगेन इट इज नॉट द एंड, ये तो उन्होंने बताया है. नाउ यू नीड टू गैदर द एविडेंस. आप बोलिए उनको कि कैन यू प्लीज गिव मी द लिस्ट ऑफ पीपल रिक्रूटेड लास्ट मंथ, 10-12 लोगों के नाम बताइए सेक्शन के साथ, फिर वो आपको लिस्ट देंगे. देन यू विल आस्क प्लीज शो मी द ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ दिस पेपर पीपल, फिर वो क्या करेंगे आपको ट्रेनिंग रिकॉर्ड दिखाएंगे. यू विल गो थ्रू द ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स. अगेन ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स कैन बी फैब्रिकेटेड ऑल्सो. नाउ व्हाट यू विल डू, अब क्या करोगे, नेक्स्ट क्या करोगे, आप आपने ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी देख लिए. नाउ नेक्स्ट व्हाट थिंग यू कैन डू, क्या करना चाहिए आपको. यस आई एम आस्किंग यू पीपल, क्या करना चाहिए आप लोगों को. इवैल्यूएशन. इवेल्यूशन भी देख ले, चलिए इवेल्यूशन भी अच्छा था. बिलीव देम कि उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बिलीव कर दोगे आप या कुछ और करोगे आप. एविडेंस के लिए फीडबैक फॉर्म या बाकी पार्टिसिपेट डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं. चलो डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, उसके आगे नहीं जाओगे आप, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे भरोसा रख लोगे. फीडबैक फॉर्म का भी We can communicate with the हाँ यस, कम्युनिकेट विद sir. द, We can communicate with the recruited person. यस. Recruited person. So you are basically interviewing them. You will ask them, can you please ask 2 or 3 people who are available in the shift now. और उनको आके, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट तो फैब्रिकेट भी किया जा सकता है, इंटरनल ऑडिट के जैसे डॉक्यूमेंट से फैब्रिकेट कर सकता है कोई. हाँ यस मिस्टर प्रशांत. फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना या उसके रिलेटेड स्क्रूटिनाइज करना, उसकी टेक्निक क्या होती है सर. देखिए जैसे अपने पास डॉक्यूमेंटेशन आ गया हमारे पास कि आपने उनको देखा कि न्यू रिक्रूट कब के आए थे, है ना, उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखा आपने, फिर उसके हिसाब से आपने देखा कि ये तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस आपके पास कलेक्ट होंगे कि यस ये सब कुछ तो किया था, इनको अवेयरनेस भी दिया गया था,
है ना, उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी मेंटेन है, सिग्नेचर्स भी है। अब अगर हम ये सोचे कि वो सही थे या नहीं थे डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको बहुत सारी पता चल जाता है कि नहीं वो एकदम नए दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट है, साल भर पुराने डेट्स उसके ऊपर, पर अभी हमको तो एकदम नए नए पेपर दिख रहे हैं, है ना। या फिर ऐसा लग रहा है कि सिग्नेचर वगैरह से आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब कभी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स किए जाते हैं तो जो सिग्नेचर्स होती है ना सबकी अलग अलग पेन से मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है। बट अगर देखिए आप अगर एक ही जगह से एक ही पेन से मार रहे हैं हर कोई सिग्नेचर, नेम्स एक ही पेन से दिख रहे हैं आपको, एक ही तरह के दिख रहे हैं, इसका मतलब वो फैब्रिकेटेड है ना। उस वक्त आपको क्या करना है, और नॉर्मली भी क्या करना है, चलो उन्होंने अटेंड भी किया होगा प्रोग्राम, इफेक्टिवनेस दिख भी रहा पेपर पे, पर एक्चुअली वो है या नहीं है, उसके लिए जो भी 10 लोग हैं उसमें से 2-3 लोगों को बुलाइए, इंटरव्यू देम 1:1। आप उनको पूछिए कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, अप्रोक्सीमेट बताएंगे वो, तो ज्वाइनिंग के वक्त आपके साथ क्या क्या, और सबसे पहले तो उसको कंफर्टेबल कीजिए। व्हेन वी गो टू दैट इंटरव्यूइंग टेक्निक, मैं आपको इसके अंदर डिटेल में बताऊंगा कि उनको कंफर्टेबल करना है, उनको क्वेश्चंस पूछना है, उनको बताना है कि वी आर नॉट फाइंडिंग द फॉल्ट्स, ओके, यू मेक हिम कंफर्टेबल। उनको बताना है कि नहीं हम आपके फॉल्ट नहीं देख रहे, वी आर जस्ट चेकिंग कि ये जो सिस्टम है प्रॉपर है या नहीं है, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए आपसे पूछ रहे हैं, ये आपको उनको एश्योरेंस देना है। और जब आप उनको पूछोगे और अगर आपको लगता है कि यस अवेयरनेस दिया गया है, दे नो अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, मे बी 60% बता पाएगा, मे बी 70% बता पाएगा कि क्या क्या ट्रेनिंग दी गई है, कैसे काम चल रहा है, ओके। आप एक्सपेक्ट मत करो कि नहीं नहीं एकदम 100% बता पाएगा, बट 60-70 भी बताता है, इसका मतलब द सिस्टम इज वर्किंग, है ना, इट इज नॉट फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड बट इट इज एक्चुअली बीइंग डन, है ना। सेकेंडली ये देखना चाहिए कि रिव्यू कब कब होते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स पता चला 5 साल पहले बना था, अभी तक रिव्यू ही नहीं हुआ, तो उनको पूछना है कि क्या 5 साल में अभी तक ऐसा कोई कॉम्पिटेंस, नया कॉम्पिटेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। पता चला वहां पे नया ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट किया, आपने प्रेजेंटेशन में हमको बताया था कि देयर इज अ न्यू SAP system we have or ERP system we have implemented for better tracking of the process in process material, production data, process data। तो क्या उसके लिए जब भी आप नया रिक्रूटमेंट करोगे, नए लोग लोगे, तो क्या या फिर एग्जिस्टिंग लोगों में क्या वो कॉम्पिटेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनको पर्टिकुलर ERP सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, तो बोलेंगे यस होना चाहिए, और वो बोलेंगे कि हमने ट्रेनिंग भी दिया, श्योर ट्रेनिंग दे दिया आपने, बट फिर वो कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट क्यों नहीं चेंज हुआ कि स्टोर्स में जो काम करते हैं, डिस्पैच में काम करते हैं, क्वालिटी में काम करते हैं, प्रोडक्शन में काम करते हैं, इन लोगों को परचेस में काम करते हैं, इन लोगों को ईआरपी सिस्टम का ट्रेनिंग देना है या ईआरपी सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज अ कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो इसका मतलब वो अच्छे से अपना जॉब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको जब ये डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटिनाइज करते हो तो इस तरह से करना है ना। आपको ये पता चल गया कि नहीं वहां पे कोई नया हमने क्वालिटी कंट्रोल में जैसे आप ऑडिट करते हो, उसके अंदर आपको पता चला एज अ करेक्टिव एक्शन आपने ये चीजें वहां पे इंप्लीमेंट की है, कुछ चीजें आपने वहां पे नई चीजें इंप्लीमेंट की है, नए इंस्ट्रूमेंट आप उन्होंने बोला कि नहीं हमने एक नई मशीन लाई है, पहले हमारे पास नहीं थी, नाउ वी हैव बॉट अ न्यू मशीन फॉर टेस्टिंग। अब नई मशीन तो आ गई है, अब जब आप मेंटेनेंस का ऑडिट करते हो तो आपको पूछना है कि आपकी लिस्ट ऑफ मशीनरीज कब रिव्यू हुई है, तो पता चला 4 साल से लिस्ट ऑफ मशीन्स वैसी की वैसी पड़ी है, लिस्ट ऑफ मशीन्स जो है मशीन से इक्विपमेंट उसको अपडेट ही नहीं किया गया। फिर आप उनसे पूछोगे कि क्वालिटी कंट्रोल की मशीन इसमें है, तो अगर उन्होंने बोला कि यस इसके अंदर है, बट बोलना वहां पे तो क्वालिटी कंट्रोल से इनपुट है कि लास्ट ईयर या लास्ट 6 मंथ बैक दे हैव बॉट न्यू मशीन, तो ये इसके अंदर एंट्री क्यों नहीं है, यहाँ पे एंट्री नहीं है, इसका मतलब उसका उन्होंने मेंटेनेंस प्लान नहीं बनाया होगा, मेंटेनेंस नहीं प्लान बनेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अपकीपिंग करना है वो होगा नहीं। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस ऑल प्रोसेसेस आर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है वो, है ना। तो आपको जब डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटिनाइज करते हो तो ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है, बोला ना आपको कि ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए आप लोगों का, एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड कि एक एक लोगों से 2-2 3-3 सेक्शन के ऑडिट करवाइए, इंस्टेड ऑफ एक आदमी को एक ही ऑडिट दोगे आप तो प्रॉपरली नहीं हो पाता है ना। वो सिर्फ वहां तक वो जो सीमित है ना, वो यहाँ तक ही सीमित रह जाएगा ऑडिट, वो कभी वहां पे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा अलग सेक्शन के साथ, या तो फिर उन्होंने उस अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करने चाहिए फिर उस
जो कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड हो। ठीक है प्रशांत जी, और कुछ आपकी और क्वेरी है उसके रिलेटेड? सर अगर ऐसा आइडेंटिफाई होता है कि ये फैब्रिकेशन है, तो उसको कैसे आगे डील करते हैं सर? अगर आपका इंटरनल ऑडिटिंग है, इफ इट इज इंटरनल ऑडिटिंग, ओके, तो इंटरनल ऑडिटिंग में जो हमने बोला है कि द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट, है ना। अगर फैब्रिकेशन है तो क्लियर कट आपको उनको बताना है कि सर ये जो हमने वेरीफाई किया है फैब्रिकेटेड डाटा है, और फैब्रिकेटेड डाटा जब रहता है इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अवर ऑर्गेनाइजेशन। आप सोचिए कि सेम डाटा अगर एक्सटर्नल ऑडिट में पकड़ा गया, पता चल गया, तो इट बिकम्स अ मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस। अब कभी कभी क्या होता है, टैक्टिकली आपको ऐसे नॉन कन्फॉर्मेंसेस ऑन पेपर नहीं दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक्सटर्नल ऑडिटर को पता चल गया कि आपके यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो डेफिनेटली फिर वो उनका आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से ये नहीं होगा, मीन्स भरोसा नहीं रहेगा। ओके, बट ऐसी चीजों को ऑफ द रिकॉर्ड जो है आपको रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे नॉन नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल है, वो कस्टमर के पास भेज दिया गलती से और पेपर पे कुछ तो भी कर दिया इन्होंने, आपको एमआरएम वगैरह क्यों रहती है, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग क्यों रहती है? इसी चीजों को बताने के लिए, ऑडिट की रिजल्ट्स मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। दैट इज व्हाई योर ऑडिटर्स एंड द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द ऑडिट, ऑडिटर्स जो कंडक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम है ना, एक तो ऑडिटर हो गया आपके, और जो मैनेज करता है पूरे ऑडिट प्रोग्राम को, वेदर एमआर और एनीबडी, ये लोग जिनको भी रिपोर्ट करते हैं या एमआर जिनके अंडर काम करता है, दे शुड बी वेरी स्ट्रांग। इवन एमआर इंडिपेंडेंटली काम करना है ना, तो उनको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। एंड इनकी जो रिपोर्टिंग नॉर्मली होती है वो डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर को होती है या सीईओज को होती है। एमआर वगैरह जो है वो प्लांट हेड को वगैरह दे नेवर रिपोर्ट, उनका रिपोर्टिंग डायरेक्ट होता है सीईओज को या मैनेजिंग डायरेक्टर को। दैट्स वाई ये जो है ना, अगर यहाँ पे एमडी है, आपके यहाँ पे सीईओ है, और उनके उनके नीचे अगर प्लांट हेड है, सो क्वालिटी विल नेवर रिपोर्ट टू द प्लांट हेड, क्योंकि प्लांट हेड के नीचे फिर प्रोडक्शन है, फिर परचेस है, फिर स्टोर्स है, मेंटेनेंस है, दैट इज ओके। क्वालिटी कैनॉट बी अंडर द सेम पर्सन, नॉर्मली दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि फोकस होना चाहिए। अदरवाइज आप अगर यहीं पे आपकी रिपोर्टिंग चली गई तो फिर बातें जो है उन बाहर कभी नहीं आएगी, इंप्रूवमेंट कभी नहीं होगा, वो फिर अंडर द कारपेट बहुत सारी चीजें दब जाती है। अगेन, ऑडिटिंग डजंट मीन क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इन चीजों के कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफ्ट या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए बहुत ज्यादा। ये कब नहीं होते, जब मैनेजमेंट का फोकस, जो टॉप मैनेजमेंट है उनका फोकस, वो अपने बिहेवियर थ्रू, वो जो आप लोगों से रिव्यू लेते हैं उसके थ्रू क्लियर कट मैसेज देते हैं लोगों को कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, क्वालिटी को प्रायोरिटी देना है, इवन बिफोर दैट सेफ्टी को प्रायोरिटी देना है ना। सेफ्टी शुड कम फर्स्ट, सेफ्टी को प्रायोरिटी देना है, क्वालिटी को प्रायोरिटी देना है, प्रोडक्शन को तो देना ही देना है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करोगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो हाउ यू विल सर्वाइव, हाउ यू पीपल विल सर्वाइव, है ना। ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बट प्रोडक्शन को फोकस करना है, दैट डजंट मीन कि आप इसको निग्लेक्ट कर दो, सेफ्टी और क्वालिटी को। ये अगर आपने इनको निग्लेक्ट कर दिया तो शॉर्ट टर्म में आप यहां तक पहुंच पाओगे, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे आप नीचे ही जाओगे। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है कि फैब्रिकेटेड है, समथिंग है, रेज इट, है ना, रेज इट इन अ प्रॉपर वे, है ना, प्रॉपर मैनर, नॉट एज अ फॉल्ट फाइंडिंग बट एज अ फैक्ट फाइंडिंग। उनको बताइए कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे इट इज डेट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल। अगर आपको लगता है कि फैब्रिकेट करने से आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर दिया, नो। ठीक है। सर एक सिचुएशन होती है कि मैनिपुलेशन ऑफ डाटा और मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन और प्रोडक्शन डाटा, और दूसरा ये फैब्रिकेशन, तो मैनिपुलेशन को भी कैसे ट्रीट करते सर? अगेन देखिए, अगर मैनिपुलेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्रोडक्शन डेटा में होता है, क्वालिटी कंट्रोल के टेस्टिंग डेटा में वगैरह होता है ना। अब इट इज डेफिनेटली, जो करते हैं मैनिपुलेशन डेटा का, वो 80% ऑफ द टाइम
is done based on the instruction they receive from the seniors, है ना. 20% टाइम वो अपनी स्किन बचाने के लिए लोग कर देते हैं, बट वो क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट उनको पता है ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वो जो जूनियर लेवल के लोग हैं वो कर लेते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिगर थिंग्स होती है वो ऊपर से ही आती है, एंड दैट्स वेयर द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू द पिक्चर. आपका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कल्चर है, आपका जो क्वालिटी कल्चर है, वो उस टाइम पे मैटर करता है. लोग मैनिपुलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जब टॉप से पूछा जाता है और इंस्टेड ऑफ आस्किंग अबाउट द सॉल्यूशंस, अगर उनको सीधा स्कॉल्डिंग शुरू हो जाता है, सो दिस काइंड ऑफ फियर जो क्रिएट होता है अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, उसके कारण लोग मैनिपुलेशन करते हैं. मैनिपुलेशन करने से किसी को कुछ ये नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं मिलता है, या फिर उनको नेके शाबाशी नहीं मिलती है. वो तो डांट से बचने के लिए, या फिर जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसके, अगर सच्चाई बताए, उससे बचने के लिए लोग ये काम करते हैं. अब मैनेजमेंट को क्लियर कट ये देना चाहिए मैसेज नीचे कि हमको क्वालिटी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है, मैनिपुलेशन नहीं करना है. क्योंकि मैनिपुलेशन आप करोगे, कस्टमर को भेजोगे, हो सकता है 100 इंस्टांसेस में से सबका पता तो नहीं चलेगा और कस्टमर को, है ना, बट एटलीस्ट 4-5 लोगों को तो पता चलेगा. एंड व्हेन सच थिंग्स हैपन, उस टाइम पे आपके टॉप मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना है, बहुत हार्श डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है. अगर वो हार्श एक्शन लेते हैं, इट विल सेट अ मैसेज टू ऑल द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि ये सब चीजें नहीं चलेगी. गॉट इट? अगर ये चीजें अगर आपके मैनेजमेंट ने क्लियर कर दे दिया कि नहीं, ये अगर बाहर गया है मटेरियल, इसका मतलब हमारे डाटा सही है, आपके रिकॉर्ड दिखा रहे हैं आपको सही, बट एक्चुअली कस्टमर को प्रॉब्लम मिला, इसका मतलब इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है. और वो क्लियर कट आपको मैसेज देना है फिर मैनेजमेंट को. मैनेजमेंट ने नीचे सबको मैसेज देना चाहिए कि दिस इज नॉट डन. जो भी कल्प्रिट्स है, हार्श एक्शन लेना चाहिए. डेफिनेटली फर्स्ट टाइम पे उनको जॉब से नहीं निकालना है, आप उनको एक बार बताना चाहिए, एंड सेकंड बार अगर होता है तो डेफिनेटली जो भी दायरे में जो भी एक्शन ले सकते हैं वो लेनी चाहिए मैनेजमेंट, है ना. दैट इज द ओनली. एज ए इंटरनल ऑडिटर जो भी ये मैनिपुलेशन है वो प्रॉपरली रिपोर्ट करनी चाहिए विद इन ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट में नहीं करना चाहिए. इफ यू आस्क मी, अगर यू आस्क मी एज अ ऑडिटर, ओके आई से कि यस करना चाहिए, है ना, बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए? इनऑफिशियली बताना चाहिए, है ना. ऑडिट रिपोर्ट मींस इनऑफिशियल रिपोर्ट, जो कि आपके ऑडिटिंग की रिपोर्ट में नहीं आएगा, जो कि आपके एज अ ऑब्जेक्टिव जो आपकी ऑब्जर्वेशन शीट रहती है उसमें नहीं आएगा. क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस ऑडिट रिपोर्ट्स कैन बी सीन बाय योर कस्टमर्स. ठीक है ना, आपके कस्टमर्स देखेंगे, आपके एक्सटर्नल ऑडिटर्स देखेंगे उसको. सो अल्टीमेटली यू आर, अगेन आई एम सेइंग कि हमको ऑडिट को इफेक्टिव बनाना है. दैट डजंट मीन वी आर टार्निशिंग द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम बाहर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं करते, ये बताने के लिए. नो, सेम आपको रिपोर्ट करना है ना, आप रिपोर्ट कीजिए, बट उसको रिकॉर्ड मत कीजिए. रिपोर्ट करना है, नॉट रिकॉर्ड. ठीक. अगर कोई इंसिडेंसेस है कि जो ओवरऑल क्वालिटी सिस्टम्स को ही अफेक्ट कर रहा है या उसको डिफीट कर रहा है, तो इन दैट सिनेरियो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू नो, यू रिपोर्ट इट, रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट. रिकॉर्डिंग करना है या नहीं करना है, जो आपके यहाँ पे जो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं, एमआर होते हैं, दे नो वेरी वेल कि कौन सी नॉन कन्फॉर्मेंसेस हमको दिखाना है वहां पर, कौन सी को निग्लेक्ट कर देना है, वो हाईलाइट नहीं करना है बाहर के लोगों के सामने. as you rightly said कि 80% of manipulation is done by the, in that scenario maybe to whom we are reporting they may not consider this as a major non-conformity, but during long run in an external audit or in the overall performance of the organization that can affect major flow to a organization. अब ये होता क्या है कि अगर ये टॉप मैनेजमेंट तक नहीं पहुंची बात, बहुत बार क्या होता है, मेरे से कम्स फ्रॉम द टॉप, उसके अंदर वो टॉप मैनेजमेंट नहीं रहता है, ये जो बीच वाले जो रहते हैं ना, दे बेसिकली कंट्रोल्स ऑल दीज थिंग्स. अब क्या होता है, जो आपकी एक्सटर्नल ऑडिट जब होती है, दैट्स व्हाई आई से रिपोर्ट इट, है ना. आपको रिपोर्ट करना है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है कि देखिए हमको ऐसा ऐसा, एंड मेल पे रखना है, डॉक्यूमेंट के साथ रखना है उसको,
कि देखिए देयर आर सर्टन मैनिपुलेशंस गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, वी हैव फाइंड दैट ओके दिस डेटास आर मैनिपुलेटेड, दिस डाटास आर फैब्रिकेटेड। और ये जो चीजें हैं ये एक्सटर्नल ऑडिट में हाईलाइट हो सकती है, कस्टमर के हाईलाइट हो सकती है, एंड इट विल इंपैक्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लियर कट मैसेज एज अ ऑडिटर आप लोगों से जाना चाहिए विदाउट एनी फियर, ओके, विदाउट एनी फियर। क्योंकि अल्टीमेटली बोला अगर हमने आपको नहीं बताया और एक्सटर्नल ऑडिटर ने बताया, अगेन द क्वेश्चन विल बी ऑन यू पीपल द हु आर डूइंग द ऑडिट, कि आप लोगों को क्यों नहीं पता चला। दैट टाइम यू पीपल शुड बी in a position to say to the management कि we have already reported it to the relevant people, इसका evidence है हमारे पास, मेल evidence है या जो भी evidence है, we have told this repeatedly but people are not taking the actions। अब उसका रिकॉर्ड में बोला ना आपको, इनऑफिशियली आप बताओ उनको कि हमने मेल किया हुआ है, यू कैन सी, एंड वी हैव पॉइंटेड आउट कि ये ऐसा इश्यू आएगा। तो जब आपका ऑडिट होता है एक्सटर्नल ऑडिट, अगर उसके अंदर मेजर नॉन एनसी मिलते और आपका सर्टिफिकेट जब ने क्या ये हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, तो एवरीबडी विल नो कि क्यों सस्पेंड हुआ है, किस कारण से सस्पेंड हुआ है, तो फिर समझ में आ जाएगा, देन इट दैट थिंग विल बी हाईलाइटेड टू द टॉप मोस्ट लेवल। और उसके अंदर फिर ऑडिटर को नहीं पकड़ता है कोई कि ऑडिटर ने ऑडिट अच्छा नहीं किया, फिर जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में वो इश्यू पता चला उनको ही ये किया जाएगा। ऑडिटर का ब्लेम, ऑडिटर के ऊपर कोई ब्लेम नहीं ले सकता इंटरनल ऑडिटर के ऊपर कि नहीं नहीं आपने क्यों नहीं देखा, नो वे। जिनके यहाँ पे प्रॉब्लम मिला, अगर क्वालिटी कंट्रोल ने मैनिपुलेट किया तो उनके ऊपर आएगा, अगर प्रोडक्शन ने मैनिपुलेट किया तो उनके ऊपर आएगा, मैनेजमेंट देन टॉप मैनेजमेंट जो है फिर डायरेक्ट उनको स्क्रू करेगी। तो आपको जो भी पॉइंट्स मिलते हैं ट्रूथफुली विदाउट द फियर, है ना, वो बोला है ना कि आपको दृढ़ता के साथ ऑडिट करना है, ऑब्जेक्टिविटी, वो लॉस नहीं करनी है आपको, उसके साथ ऑडिट करना है, जो भी आपकी फाइंडिंग है सब लिखना है। अब कौन सी रिपोर्ट करनी है ऑफिशियली, आई एम टेलिंग, है ना, कौन सी रिकॉर्ड करना है ऑफिशियली इन द ऑडिट रिपोर्ट और कौन सी इनऑफिशियली कम्युनिकेट करना है, वो फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। जैसे हम भी ऑडिट करते थे, वी फाइंड 10 नॉन कन्फॉर्मेंसेस फॉर एग्जांपल, बट उसमें से कुछ ऐसी होती थी 4-5 एनसीज की वी कैनॉट शो और वी कैनॉट रिकॉर्ड, बट दैट डजंट मीन कि हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते थे, एक्शन तो 10 के ऊपर लेते थे तभी हम रिपोर्ट क्लोज करते थे, बट उसमें से 5 जो रहती थी वो रिकॉर्ड होती थी, 5 नहीं होती थी। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ प्रॉपर थिंग, बट आपको अगर लॉन्ग रन में बिजनेस चलाना है तो समथिंग यू नीड टू डू। सब लोगों को पता है कि इट इज नॉट एवरीवेयर वाइट वाइट, है ना, देयर आर सर्टन डार्क पैचेस ऑल्सो, बट आपका इंटेंट अगर अच्छा है, जैसे मैंने बताया कि आप 5 एनसी जो हम छुपा रहे हैं, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग इट ऑन द पेपर, द पर्पज इज नॉट टू कीप इट विद इन द कारपेट, नहीं, हम तो उसने 10 की 10 रिपोर्ट कर रहे हैं हम टॉप मैनेजमेंट को, हमने बताया कि देयर आर 10 एनसी, देयर इज अ बिग गैप। अब हमको उसके ऊपर से एक्शन तो 10 पे लेना है, ऑफिशियली पेपर के ऊपर 5 ही एनसीज दिखा रहे हैं हम, क्योंकि जब एक्सटर्नल ऑडिट आएगा, हमने जब सब पे एक्शन लिया है तो उनको नहीं मिलेगी एनसीज, उनको क्यों मिलना है एनसीज, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम तो इफेक्टिव है, वी आर वर्किंग प्रॉपरली। हमने उनको जो गलतियां कर रहे थे उसके रूट कॉज में जाके हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, एंड वी हैव इंप्रूव्ड द सिस्टम। अल्टीमेटली ISO 9001 का एम जो है, यू नीड टू कंटिन्यूली इंप्रूव योर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, थ्रू वे ऑफ रिव्यूज, थ्रू वे ऑफ ऑडिटिंग, ओके। यस मिस्टर प्रशांत, इज इट क्लियर? सर जो हाइपोथेट हाँ, यस सर, प्रीवियस पॉइंट इज गुड सर। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में ज्यादा चांसेस होते हैं कि अपने को सिस्टम के जो फ्लॉज है या नॉन कन्फर्मेटरी फाइंड आउट कर सकते हैं रादर देन ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के। या क्लोज एंडेड में, ओपन एंडेड में तो देखो वो तो कंफर्टेबल करना है ऑडिटर को, उनकी सिस्टम समझना है। ओपन एंडेड में आप अल्टीमेटली वहां तक नहीं पहुंचोगे, एनसी तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, क्लोज एंडेड में पहुंच सकते हैं आप। जैसे आपने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने बोला नो, नो कर रहे, इसका मतलब इट्स अ नॉन कन्फॉर्मेंस। जब क्लोज एंडेड में जाओगे तो यू विल गेट डेफिनेट आंसर, आइदर यस और नो। सो वो अगर करते हैं तो आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे, शो मी।
अगर फॉर एग्जांपल आपने उनको पूछा कि डू यू मैप द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द पीपल, अगर पहला ही आंसर नो है तो हो गया, इट इज अ नॉन कन्फॉर्मेंस, क्योंकि देयर इज अ रिक्वायरमेंट। आप क्वेश्चन भी वही करोगे ना कि जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना। डू यू कम्युनिकेट द क्वालिटी पॉलिसी टू द पीपल, यस और नो, दे से नो, हो गया, देयर इज अ नॉन कन्फॉर्मेंस। क्वालिटी पॉलिसी नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और हाइपोथेटिकल में डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जाके पूछते हो कि ऐसा हुआ तो कैसा करते हो आप, है ना। हाइपोथेटिकल में एक तो लीडिंग हो गया आपका। हाइपोथेटिकल में क्या है, हाइपोथेटिकल में आप नॉन कन्फॉर्मेंस नहीं दे सकते हो। हाइपोथेटिकल में आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह से हैंडल किया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने उनको पूछा कि इफ यू कम टू नो that the material that you are supplied to the customer is having certain parts with the non-conformances, how you deal with this situation? अब ये क्या हो गया, इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। माइट बी ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ है, क्योंकि देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन द कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, कस्टमर के पास जाता है तो आपको किस तरह से डील करना है, देयर इज अ गिवन रिक्वायरमेंट। अब आप उनसे पूछ रहे हो बाय वे ऑफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि रियल सिचुएशन आपको ऐसा मिला नहीं उनके यहाँ पे, तो आप उनसे पूछ रहे हो कि आपका सिस्टम क्या है, आप क्या करोगे। तो बोलेंगे कि यस हम ऐसा ऐसा करते हैं। तो हम उनको पूछ सकते हैं कि ऐसा कभी हुआ है आपके यहाँ पे, वो बोलेंगे नहीं हुआ है, बट हम ऐसा रिएक्ट करेंगे। तो क्या कहीं पे लिखा हुआ है आपने कि इन सच केसेस यू विल डू लाइक दिस? तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा करना है तो आप सेटिस्फाइड हो। इवन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है पर उन्होंने आपको बता दिया कि यस दिस इज हाउ वी आर कंट्रोलिंग इट, वी विल कंट्रोल इट, तो भी आप सेटिस्फाइड है। आप वहां पे एज ऑडिट एविडेंस बता सकते हो कि इंटरव्यूड मिस्टर सो एंड सो confirmed that whenever such scenario will happen, they are going to control it by way of this, by communicating to the customer to hold that particular lot, sending our representative there, checking the all the things, and ask the customer to use it only if the lot is cleared by your representative. It's okay. So आपको जो, हाँ यस मिस्टर प्रशांत। Yes, Mr. Prashant, you have raised the hand. Sir, by the using hypothetical question, can we find out the whether system is in place, or can we assess the overall system performance by hypothetical questions? Yes, you can, you can. जैसे कोई सिनारियो नहीं, जैसे हमने आप फॉर एग्जांपल नया नया कंपनी है एकदम, अब उसमें लास्ट के 6 महीने में कोई रिक्रूट नया हुआ ही नहीं फॉर एग्जांपल, है ना। तो आपके जो बिटवीन द टू ऑडिट साइकिल अगर कुछ नई थिंग नहीं हुई है, ओके, बट आप वो पूछ सकते हो जैसे मेंटेनेंस का है, नई मशीन नहीं ऐड हुई है, बट यू वांट टू आस्क कि वो नई मशीन जब ऐड होती है तो किस तरह से ट्रीट करेंगे उसको। तो अगर उन्होंने बोला कि यस वी विल रिव्यू द डॉक्यूमेंट, वी विल इंक्लूड दैट पर्टिकुलर मशीन, वी विल go through their user manual and everything, machine manuals, and create a preventive maintenance check sheet for that one। तो अल्टीमेटली आप तो ओवरव्यू ले रहे हो ना सिस्टम का कि ये लोगों को अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, उससे पता चल जाती है। अगर उन्होंने ये बोला कि नहीं अभी तो आया ही नहीं है हमको, तो हमने सोचा ही नहीं है, जब आएंगे तब देखेंगे, अब इसके ऊपर आप नॉन कन्फर्मेंस नहीं दे सकते हो, ठीक है। बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द सिस्टम एज ऑडिटर, आपको पता चल गया कि नहीं ये थोड़े सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर ले, फिर आप क्या करोगे, और ज्यादा डीप में जाओगे उसमें। और अगर आपको किसी ने इस तरह से आंसर दे दिया प्रॉपर वे से कि नहीं जब भी कभी नई मशीन आएगी वी विल अपडेट अवर लिस्ट ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम उसको उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान में उसको इंक्लूड कर लेंगे, उसके जो मशीन मेंटेनेंस मैनुअल आए थे उसके बेस पे हम उसका एक चेकशीट बना लेंगे, रेगुलर मेंटेनेंस चेकशीट, या फिर जो आपका रेगुलर डेली चेकअप चेकशीट या मंथली चेकिंग चेकशीट बना लेंगे। अगर उतनी क्लैरिटी है इसका मतलब यस उनको वो सिस्टम फॉलो करेंगे, है ना। सेकेंडली, जैसे कोई ऐसा सिनारियो है जिसके अंदर आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो जाता है आपका इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअली नहीं मिला आपको कोई, आप उनको पूछोगे तो दे विल से कि नहीं हमारे यहाँ कोई आउट ऑफ कैलिब्रेशन ऐसा अभी तक मिला नहीं है, जो भी है एज पर कैलिब्रेशन है, ओके। सो अगर आपको
अगर आपको ऐसे इसमें पूछना है उनको, यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू देम कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसके अंदर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो जाता है, तो आप उसको इन बिटवीन, तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, जो पुराना डाटा है उसको आप कैसे ट्रीट करते हो। तो उनसे आपको कुछ आंसर्स मिलना चाहिए, और वो हाइपोथेटिकली यू कैन वेरीफाई, और अगर उनके आंसर्स जो रिक्वायरमेंट थी उस इसका उस हिसाब से नहीं है, यू कैन इवन रेज द नॉन कन्फॉर्मेंस। That is where the interviewing technique will come into the picture. That is what is gathering the audit evidences. It is not only the documented thing, it can be through the interviews also. ठीक है मिस्टर प्रशांत? यस सर। अगर कोई भी क्लैरिटी नहीं तो यू कैन आस्क अगेन, है ना। अगर कहीं पे इफ आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टूड, प्लीज कीप ऑन रेजिंग द क्वेश्चंस, है ना। द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, दिस वे वी आर गोइंग टू, जो सिनारियो हुआ ही नहीं हुआ बट आप उनको पूछ सकते हो कि ऐसा होता है तो आप कैसा करोगे, है ना। दैट इज द डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग, है ना। दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज योर फनेल टेक्निक ऑफ क्वेश्चनिंग, बट वी विल गो थ्रू दैट आफ्टर 2-3 minutes of break. Okay, so we will have a small break of 2-3 minutes. Yes, Mr. Prashant, do you have any questions? Or it was from the same last time you raised the hand? Okay. So we will start after 2 minutes, okay? We will start after 2 minutes. यस सर। Yeah. So it is the funnel technique of questioning. एक ये भी होता है. Again, I am telling you, it is not necessary कि ये सब कुछ यूज करना है. ऑटोमेटिकली जब हम ऑडिटिंग करने लगते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको एक्सपीरियंस हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आप चलते हो देन, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि मुझे किस तरह से जाना है वहां तक, है ना। अब होता क्या है कि बहुत बार जब हमको एक्सटर्नल ऑडिट में नॉन कन्फर्मेंसेस मिलते हैं, तो उस टाइम पे हमको ये लगता है कि ये हमको पता नहीं चला, और एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं हार्डली 1 या 2 घंटे में या 3 घंटे के अंदर आपके उस सेक्शन में उस पर्टिकुलर चीज को वो नॉन कन्फर्मेंस फाइंड आउट कर देते हैं। वो ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो ट्रेल है ना, ट्रेल बेस्ड ऑडिटिंग चलते रहता है उनका। वो क्वेश्चनिंग टाइप, उनको पता रहता है कि कहाँ पे क्या देखना है। और बहुत बार क्या होता है कि हम उसी सिस्टम में काम करते रहते हैं, सो हम वो ओमिट करते हैं, जानबूझ के ओमिट करते हैं, वी इग्नोर दैट थिंग्स, जो कि फिर बाहर के लोग आके हाईलाइट कर देते हैं। अगेन, आपके यहाँ पे अगर नॉन कन्फर्मेंसेस मिलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट में, दैट डजंट मीन एट ऑल कि आपके यहाँ का क्यूएमएस इफेक्टिव नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, है ना, ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो माइनर एनसीज अगर मिलती है तो टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूविंग योर सिस्टम। हाँ, मेजर एनसी इट मीन्स देयर इज अ लैप्स। अगर एक्सटर्नल ऑडिट में आपको मेजर मिलती है, इट मीन्स देयर इज अ लैप्स, मेजर लैप्स इन योर सिस्टम। माइनर मिलती है
टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूविंग योर सिस्टम अगेन। जब आप उस जो नॉन कन्फर्मेंसेस है उसके रूट कॉज में जब हम जाएंगे, देन यू विल रियलाइज कि नहीं, कहाँ पे हम गलतियां कर रहे थे। लाइक रोम इज नॉट बिल्ट इन अ वन डे। सिमिलर वे योर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पहले ही दिन से एकदम इफेक्टिव नहीं रहेगा या फिर परफेक्ट नहीं रहेगा। लेट मी टेल यू, है ना, इफेक्टिव है बट इट मे नॉट बी परफेक्ट। सेकंडली, हर एक ऑडिटर का जो नजरिया होता है, देयर व्यू पॉइंट कैन बी डिफरेंट। एक साल एक ऑडिटर आता है, उसको वो चीज एक्सेप्टेबल है, बट नेक्स्ट टाइम कोई ऑडिटर आता है तो ही मे रेज सर्टन क्वेश्चन और मे नॉट बी may find some non-conformance within that particular thing you are doing। तब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, पिछले ऑडिटर ने तो एक्सेप्ट किया था। नो वे। अब इस ऑडिटर के पास कोई नया व्यू पॉइंट है, अगर लॉजिकली वो अगर नॉन कन्फॉर्मेंस है, क्योंकि नॉन कन्फॉर्मेंस ऐसा भी नहीं कि उनको मन में आए तो दे पाएंगे। दे विल टेल यू कि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम एंड यू आर नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, फिनिश। दैट्स व्हाई इट इज द नॉन कन्फॉर्मेंस। अब वो ऑडिट एविडेंस के साथ आपको बताएंगे, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। उसको और फर्दर आपको इंप्रूव करना है सिस्टम को। नाउ फनेलिंग में क्या होता है, आप ओपन क्वेश्चन से चालू करते हो और क्लोज एंडेड से क्वेश्चन से फिनिश हो जाते हो वहां पे, ताकि आपको डेफिनेट आंसर मिले कि यस दे आर फॉलोइंग सर्टन सिस्टम्स और नॉट। अगर नहीं कर रहे हैं, इट्स अ नॉन कन्फॉर्मेंस। अब एचआर का आप ऑडिट कर रहे हो, नॉट एचआर का, एचआर सेक्शन का करते हो, बट इन दैट ट्रेनिंग प्रोसेस जो हमारा है, यू आर ऑडिटिंग ट्रेनिंग प्रोसेस। आप उनको पूछ रहे हो हाउ डू यू मैप द कॉम्पिटेंस ऑफ द वर्कफोर्स। अब आपने ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड है, यू आर मेकिंग हिम कंफर्टेबल। हाउ डू यू मैप, फिर वो आपको बताएगा, मे बी 4-5 सेंटेंस 10 सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करेगा। जब वो एक्सप्लेन करेगा तो वो अपने सिस्टम के बारे में कितना कॉन्फिडेंट है वो पता चल जाएगा आपको। हाउ वेल ही इज अवेयर अबाउट हिज ओन सिस्टम, वो आपको पता चलेगा। जो लोग सिस्टम फॉलो करते हैं प्रॉपरली, उनको इधर उधर डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं रहती। दे कैन एक्सप्लेन यू बिकॉज इट इज इन देयर प्रैक्टिस, उनकी प्रैक्टिस में है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल से आपको पता चल जाता है। व्हेन यू वर्क एज अ ऑडिटर, ऑडिटर के कॉन्फिडेंस लेवल जो रहती है बताने की, उससे पता चल जाता है आपको कि यस एक्चुअली देयर इज अ सिस्टम। और अगर वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट वे से अगर आपको बताता है कि वो कैसे कॉम्पिटेंस वर्कफोर्स का मैप करते हैं, देन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। देन आप पूछ सकते हो कि आप ट्रेनिंग कैसे प्लान करते हो लोगों की। कॉम्पिटेंस कर दिया आपने, या फिर आप कॉम्पिटेंसी को जो ये है रिव्यू कब करते हो आप, है ना, उनका ट्रेनिंग कैसे प्लान करते हो। अब ट्रेनिंग करने के बाद आप इवेल्युएशन कैसा करते हो। अभी तक आपने उनको बोला नहीं कि मुझे दिखाओ करके किसी का, है ना, आप समझ रहे हो अभी सिस्टम को, है ना। यू आर नॉट पिन पॉइंटेडली गोइंग टू सर्टन थिंग्स। आप उनका फॉल्ट नहीं ढूंढ रहे हो अभी डायरेक्टली, आप उनको कंफर्टेबल करके क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनके सिस्टम के बारे में, है ना। अगर उन्होंने ये बोला कि हाउ डू यू मैप द कॉम्पिटेंस, और अगर उसने बोल दिया कि यस दिस इज अवर डॉक्यूमेंट एंड यू कैन सी इन दिस डॉक्यूमेंट, फिर समझ जाना कि उनको नहीं पता है। यू कैन आस्क हिम, ओके वी नो द डॉक्यूमेंट इज देयर, वी कैन सी इट थ्रू ऑल्सो, बट कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अस हाउ यू आर डूइंग एक्चुअली। तो उनको बताते आना चाहिए आपको। या इवन जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसको पिन पॉइंटेडली दिखा के कि दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉम्पिटेंसी, वो पेपर वो पेज निकाल के आपको दिखा दे हाथ में, आपके सामने रखे और साथ ही साथ एक्सप्लेन करे। ताकि ये क्यों करना चाहिए ऑडिटी ने, एज अ ऑडिटर ऑल्सो आपको भी करना है, कभी कभी आप भी ऑडिटर रहोगे। तो ऑडिटर को आपको उस पर्टिकुलर आपको बताना है कि यस वी हैव अ प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग एंड इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। उसके अंदर ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है, इसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि कॉम्पिटेंसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पीपल। इसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे कैसे हम ये करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ आप एक्सप्लेन करो उनको कि यस जब जो भी वेरियस हमारी पोजीशन है इन द ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको वो काम इफेक्टिवली करने के लिए और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड नॉलेज होने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है, वो हम डिटरमाइन करते हैं अलोंग विथ द
प्रोसेस ओनर्स, इसका मतलब जो एचओडीज वगैरह है उनके साथ मिलकर हमें करते हैं. इट इज नॉट कि एचआर को सब कुछ पता रहेगा. एचआर कैन नॉट टेल यू कि मेंटेनेंस के लोगों के अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंस होना चाहिए. वो तो अलग अलग रहेगा ना. हाइड्रोलिक्स का नॉलेज होना है नहीं होना चाहिए, इट इज दैट वो बताएगा. अगर किसी ऑपरेटर को लेना है, आपको फिटर को लेना है, तो उसको लेथ मशीन आनी चाहिए नहीं चाहिए, लेथ ऑपरेटर के पास क्या क्या कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उसने कितनी मिलीमीटर के इंचेस की मशीन पे काम किया रहना चाहिए, वो तो मेंटेनेंस के लोग बताएंगे, है ना. उसने शेपर पे काम किया है कि नहीं किया है, आपके ब्रोचिंग मशीन पे काम किया है कि नहीं किया है, दैट डिपेंड्स ऑन द सेक्शन हेड्स. तो उनके साथ मिलके करते हैं. तो यस, नाउ ही यू नो कि उनको नॉलेज है इस चीज का, कैसे कैरी आउट करना है कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स. क्योंकि ISO 9000 उन्होंने बोला तो नहीं है कि आपको कैसे कैसे करना है, किसके साथ मिलके करना है. उन्होंने ये बोला है कि आपको कॉम्पिटेंसी जो है वो मैप करके रखनी है लोगों की, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, उनके जो सर्टिफिकेशन है, ट्रेनिंग है, उसके बेस पे वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए. अब कॉम्पिटेंट होने के लिए पहले कॉम्पिटेंसी तो पता होना है ना. इसके लिए हम कॉम्पिटेंसी मैप करते हैं. आप उनको कैसे ट्रेनिंग प्लान करते हो वो फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे. फिर आप बोलोगे कि ट्रेनिंग देने के बाद फिर आप इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन करते हो क्या, कैसे करते हो या कौन करता है, तो वो बताएगा कि यस सो एंड सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन. अब आप जाओगे सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, ये तो हो गया आइडियल सिचुएशन, ऐसा करना है, इसने करना है. यस यस मिसेस देशमुख, you have some question, you raise the hand. Sir, competence, yes. Competence mapping is a role, for under whose scope competence mapping comes? It is lead by the HR, है ना. This is the ownership is with the HR. But The inputs will come from But- various section heads, okay. है ना. So, do you have any example of competence mapping sheet? Yes, I have. Do you want to share it now? Because you can just tell it, sir. Because at our end we do not have competence mapping like any format. It is Okay. just in while interviewing, the resume of the person shows that he has some skills, or what skills as per our requirement. We call the person as per our requirement, that we said we require a BSc chemistry person, or we require a BSc microbiology person. Yes. And as per that, the skills are mentioned in his resumes. But Okay. competence like we haven't seen up till now. Okay. So I will share with you people this document, है ना. For some sections I will share. तो फिर इंडस्ट्री, बिकॉज इट इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक, हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना रहेगा. बिकॉज वन इज द क्वालिफिकेशन, है ना. आपने जैसे बोला कि मुझे 3 साल का BSc माइक्रोबायोलॉजी का चाहिए लोग, है ना. दैट इज ओके. बट होता क्या है कि आपके कंपनी में काम करने के लिए ओनली दैट क्वालिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट, है ना. फिर आपको उसकी कॉम्पिटेंस चाहिए कि यस उनको ये काम आना चाहिए. लाइक क्या उनको MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, क्या उनको कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, उनको प्रेजेंटेशन बनाते आना चाहिए नहीं चाहिए. दैट इज यू पीपल्स रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट, है ना. अपार्ट फ्रॉम द क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉम्पिटेंस मैट्रिक्स. ओके. सेकेंडली, हाँ, सेकेंडली जैसे उनको फिर आपको जो ट्रेनिंग देना है, जैसे अवेयरनेस अबाउट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. अब ये आप ड्यूरिंग इंटरव्यू तो पूछोगे नहीं, ये आपको कब करना है, जब ऑनबोर्डिंग हो जाता है, तब उनको आपको पता है कि इनके पास एक नॉलेज गैप है, और अगर हमारे इंडस्ट्री में इनको काम करना है, वी नीड टू फुलफिल दैट नॉलेज गैप, है ना. सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी डिफरेंट. सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर वो BSc है, 3 साल का एक्सपीरियंस है इन माइक्रोबायोलॉजी है ना, और उनको MS ऑफिस वगैरह आता है, दैट कैन बी ए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द पर्सन. बट आफ्टर दैट, फॉर इफेक्टिवली वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, you have to have certain competence requirement from that people. जब फिर आपके पास वो हर बार आप उनका कॉम्पिटेंस मैपिंग के साथ उनकी जो अवेलेबल स्किल्स है ना, कॉम्पिटेंस मैपिंग करोगे आप, दिस इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज प्रेजेंट. नाउ ये जो गैप होता है, उसके बेस पे ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई की जाती है, क्योंकि ये गैप को हमको फुलफिल करना है.
हमको कंटिन्यूसली उनको कॉम्पिटेंट बनाने के ऊपर काम करना है. सो व्हाट हाउ वी विल अचीव दैट? थ्रू द ट्रेनिंग, थ्रू द मेंटरिंग. हम उसको अचीव करेंगे, वो कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करेंगे. ठीक है. सो आई विल शेयर विथ यू पीपल. ओके, दिस डॉक्यूमेंट आई विल शेयर विथ यू पीपल. Hearing some kind of background noise. Are you people hearing some kind of background noise? Yes, sir. You know, I also hearing. I'm not very sure whose microphone is unmuted, because here in my side also it is happening. Just give me a minute, है ना? Let. Okay. है ना? So this is how funneling technique works. है ना? This is how we need to ask the questions. Okay. Sorry, it is really, it is too much. Yeah. So this is how the funneling technique will work. आपको पहले ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना है, और जैसे जैसे हम आगे पूछते हैं आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन के साथ डेफिनेट आंसर के ऊपर जाना है, ताकि यू विल चेक विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और कंपेयर करोगे. अगर उसके अंदर हमको नॉन कन्फॉर्मेंस मिलता है, यू विल रेज द नॉन कन्फॉर्मेंस. नाउ वेज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. How we are going to collect the information? है ना? We have to there are ways, because ultimately in the audit what we are doing is collecting the information. And how we can do that? By way of interviewing the employees or auditee. जैसे मैंने बताया, if you want to find out whether the quality policy has been communicated to the people, understood by the people or not, so in that case what you will do? In that case you will ask the people, you will interview some people to check whether they have understood the quality policy or not, whether they have been communicated about the quality policy or not. This is what you will check. Then observation of process activities and surroundings. How you will collect the information? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट प्रॉपर है या नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू आस्क, है ना? यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व. मशीन जो है मेंटेन है या नहीं है, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व. वेदर द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट डिवाइसेस आर प्रॉपरली आइडेंटिफाइड और नॉट. It is not something like you need to interview the people. You can observe. You can go to the measurement and monitoring device. You can check whether they are identified properly. उनका calibration status है या नहीं है. The documented records जो थे हमारे, जो test records है, whether they are properly legible, whether there is a proper authorization or not, ये हम क्या करते हैं? वो observation से भी पता चलता है आपको. Documented information, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग्स, इससे भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, है ना? एविडेंस ऐसे रिलेटेड टू द ऑडिट वो आप कलेक्ट कर सकते हो. रिकॉर्ड, जैसे मैंने अभी बताया था, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स है, पुराने ऑडिट्स के रिकॉर्ड्स है, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, योर मशीन रनिंग रिकॉर्ड्स, मशीन के ऊपर जो टेस्टिंग्स हुए थे उनके रिकॉर्ड्स,
ultimately you will go through that and collect it as a audit evidence. Collect ka doesn't mean you need to take the printout or you need to take the photos. You will note it down that yes, format number so and so, test record dated so and so, shift checked by, product ये था जिसके अंदर the requirement was so and so and actual results were so and so. Now ये जब आप लिखते हो ना, अब इसके बाद वो वहां पे रिकॉर्ड पूरा चेंज करके वापस आपके पास नहीं आ सकते कि नहीं वो तो मिला ही नहीं था, इट इज नॉट, द एनसी वाज नॉट देयर, आपने गलत लिखा है, वो आपको नहीं बोल सकते एज ऑडिटर. ठीक है, आपने जब लिखा है तो उनके सामने लिखा हुआ है, यू हैव टोल्ड दोज पीपल कि यस दिस इज व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड. ओके, सो रिकॉर्ड्स कैन बी अ इनपुट, कैन बी टेकन एज अ ऑडिट एविडेंस. देन KPIs, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के डेटा है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के डेटा है, एनालिसिस के डेटा है, ये सब आपके पास एज अ ऑडिट एविडेंसेस आप ले सकते हो. क्योंकि नॉन कन्फॉर्मेंस रेज करने के लिए आपको ऑडिट एविडेंस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट ओनली यू विल चेक विद द रिक्वायरमेंट and then you will say ki yes it is a non conformance. Your non conformance statement should be backed with the audit evidences. कस्टमर के फीडबैक की रिपोर्ट, एक्सटर्नल प्रोवाइडर की इवैल्यूएशन की रिपोर्ट्स, ये भी आप ऑडिट एविडेंस की एज ऑडिट एविडेंस ट्रीट कर सकते हो. डाटाबेस है, वेबसाइट है, कोई अदर सॉफ्टवेयर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, उसको भी एज अ ऑडिट एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो ऑडिट एविडेंस आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे कि नॉन कन्फॉर्मेंस कैसे रेज करना है दैट टाइम, और इवन आज जो हम आपको बताएंगे ऑडिट शीट प्रिपेयर करना, उसके अंदर भी आप देखोगे ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट देयर इज अ मेंशनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंसेस. अब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं तो किस तरह से होती है ना, देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस फ्लो दिया हुआ है. अगर आप इस तरीके से जाते हो सो योर गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी वेरी इफेक्टिव. जैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, देन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग. आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल फॉर यू पीपल टू check the records of competency of all the people in the organization? Is it possible? It is not possible at all, है ना. तो आपको क्या करना पड़ता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, द कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स और द कॉम्पिटेंसी नॉर्म, दैट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग. अब एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग क्या हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम एक ही सेक्शन के 15 लोगों के डाटा चेक कर लेंगे, नो. कुछ तो आपके पास इनपुट आएगा अदर ऑडिटर से, कुछ आप क्वालिटी कंट्रोल के लोगों का कॉम्पिटेंसी नॉर्म्स देख लोगे या मैट्रिक्स देख लोगे, कुछ प्रोडक्शन की एक्टिविटी का, कुछ HR के पर्सन का इटसेल्फ. तो ऐसे 4-5 सेक्शन के, ऐसा भी जरूरी नहीं कि सभी सेक्शंस के लेने हैं, 4-5 सेक्शन के लोगों का आप डाटा चेक करोगे. या ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस हम चेक कर रहे हैं, समझो आप. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, है ना. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिकॉर्ड्स. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिकॉर्ड. ये आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना. फिर आप ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस सभी ट्रेनिंग का थोड़ी देखोगे. आप जो 10 ट्रेनिंग है उसमें से 2 या 3 ट्रेनिंग सिलेक्ट करोगे, और 2 या 3 ट्रेनिंग में से भी कुछ पार्टिसिपेंट्स के हम ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, एक 2 ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स उनके चेक करेंगे. दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग, है ना. नॉर्मली हम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के ऊपर नहीं जाते लोग, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हमको इतना % करना ही है. नॉर्मली हम जजमेंट बेस्ड सैम्पलिंग पे जाते हैं. अगर आपको उनके जो सैम्पलिंग आपने फॉर एग्जांपल 10 ट्रेनिंग है, उसमें से 2 ट्रेनिंग का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, और वो जो 2 ट्रेनिंग है ना, उसमें से आपने 1 या 2 किया, अगर वो आपको एप्रोप्रिएट लगा आपने और 1 का कर लिया,
वो भी आपको ठीक लगा, सो दे यू कैन एंड हियर। बट ये एक या दो लोगों को किया, उसके अंदर प्रॉब्लम मिला, तो आप क्या चाहोगे कि मैं और 3-4 लोगों का चेक कर लूं कि क्या सच में पूरा सिस्टम मिला है कि जस्ट बिकॉज 1 और 2 और केसेस में हुआ है, तो उस केस पे आप एक्स्ट्रा चेकिंग कर सकते हो, है ना। और जो भी है, अब इसके बेस के आपके पास एविडेंस आ जाएगा, दैट इज ऑडिट एविडेंस कि यस पर्सन एम्प्लॉय कोड सो एंड सो, नेम सो एंड सो, ट्रेनिंग नेम सो एंड सो, ट्रेनिंग डेट, इस ट्रेनिंग डेट के अंदर ये टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग दिया गया था, उसका जो इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन था एज पर कंपनी के 30 डेज के अंदर होना था, और इसका जो इफेक्टिवनेस हुआ वो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, इसमें यहाँ पे ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस नहीं किया गया, ठीक। So this is how you can collect the audit evidence. Now जो audit evidence हमको मिला हुआ है, you need to evaluate it against the audit criteria. ये audit criteria जो था हमारा, उसके against में क्या है? If it is meeting the audit criteria, okay. If it is not meeting the audit criteria, not okay. So that will become your audit finding, है ना। तो ऑडिट क्राइटेरिया के साथ ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करना है, कंपेयर करना है ना। ऑडिट क्राइटेरिया और ऑडिट एविडेंस अगर वो मैच करते हैं, ओके, वेल एंड गुड। इफ इट इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट, योर ऑडिट फाइंडिंग विल बी दैट, एंड देन देयर इज अ ऑडिट रिव्यू ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग। हम क्या करते हैं फिर, जितनी ऑडिट फाइंडिंग मिली है उसको रिव्यू किया जाता है। नाउ दिस पोर्शन इज बेसिकली डन इन द एक्सटर्नल ऑडिट्स, इट इज नॉट डन इन द इंटरनल ऑडिट्स नॉर्मली, है ना, क्योंकि ऑडिट फाइंडिंग आएगी, नॉन कन्फॉर्मेंस आ गया तो इट इज आप रेज कर दोगे एनसीआर। बट एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, वो सभी जो हमारे नॉन कन्फॉर्मेंसेस है, जो ऑडिट फाइंडिंग्स है, उसको रिव्यू करते हैं और बेस्ट एंड ऑडिट कंक्लूजन करते हैं कि वो ऑडिट पास है या फेल है ना, वो पास है या फेल है, ये आपका कंक्लूजन होता है। बट इंटरनल ऑडिट में इट इज नथिंग लाइक पास और फेल, इट इज अ नॉन कन्फॉर्मेंस। आप वो नॉन कन्फॉर्मेंस रेज कर दोगे ना, यू विल रेज द नॉन कन्फॉर्मेंस। सो यहां पे किसी को कोई डाउट है तो दे कैन रेज द हैंड्स। ओके, now conducting the interviews, how you are going to conduct the interviews। तो ब्रीफली मैंने आप लोगों को तो बता ही दिया था कि किस तरह से हमको इंटरव्यू कंडक्ट करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। स्टिल वी विल गो थ्रू अगेन, है ना, फॉर्मली वी विल गो थ्रू दैट, क्योंकि कंडक्टिंग इंटरव्यूज इज अनदर वे ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, है ना। इट इज अनदर वे ऑफ, इट इज अनदर टूल इन योर हैंड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑडिट। ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने का एक टूल है वो। सो इंटरव्यूज आर कंडक्टेड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू को जो आप चूज करते हो, यू नीड टू चूज फ्रॉम द एप्रोप्रिएट लेवल, है ना। जो हायरार्की होती है, एप्रोप्रिएट हायरार्की का सिलेक्ट करना है, एंड फंक्शन विद इन द स्कोप, जो ऑडिट के आपका स्कोप है उसी के फंक्शंस के विद इन आपको उनको लेना है। जैसे कि if you want to ask about the corrective action and preventive action taken on the customer complaints or customer feedback, or what is the level of customer satisfaction, अब आप उसको जो मशीन के ऊपर ऑपरेटर है उसको अगर जाके आप पूछोगे, you will not get the satisfactory answer, है ना। that kind of information might not be available with them, है ना, कि मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू योर प्रोसेस क्या है, वहां तक का नॉलेज एक ऑपरेटर को होने में टाइम लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि उनको
नहीं रहना चाहिए, रहेगा। बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड आस्क टू द सेक्शन हेड्स। ऑपरेटर को आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए रिलेटेड टू द एक्चुअल वर्क व्हाट दे आर डूइंग। उनको ये पूछना चाहिए कि आप किस एसओपी के हिसाब से काम करते हो, नॉन कन्फर्मेंस मिलता है तो क्या करते हो, रिपोर्ट किसको करते हो, क्या आप मशीन बंद कर देते हो या आप वैसे ही मशीन चलाने देते हो नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल के साथ, है ना। वो चीजें आपको पूछना है। उनको पूछना है कि मैकेनिकली अगर कुछ आपको ऑब्जर्व होता है, ब्रेकडाउन होता है तो आप किसको रिपोर्ट करते हो, ये चीजें पूछना है उनसे। आप उनको अगर हाई लेवल की चीज पूछोगे तो यू विल नॉट गेट द राइट आंसर। और सिमिलर वे जो भी चीज हमको उनको पूछने वाले हैं, सो बेसिकली ऑडिटिंग में आपको राइट क्वेश्चन पूछना है, राइट टाइम पे पूछना है, राइट वे में पूछना है एंड राइट लोगो से पूछना है। तभी आपको जो इनपुट मिलेंगे फॉर योर ऑडिटिंग फॉर एज अ ऑडिट एविडेंस वो प्रॉपर रहेंगे। अदरवाइज आपको जो इनपुट मिलेंगे वो प्रॉपर नहीं मिलेंगे, आपका ऑडिट इफेक्टिव नहीं होगा, ऑडिट कंडक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा। देन कंडक्ट, यू हैव टू कंडक्ट दिस इंटरव्यू ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अगर पॉसिबल है तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स में ही करना है और वहीं पे करना है जहां पे वो काम करता है, अगर इट इज अलाउड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंडली इफ इट इज पॉसिबल, मीन्स वहां पे कोई नॉइजी लेवल नहीं है, सेफ्टी हजार्ड नहीं है, तभी आपको वहां पे करना है ना। कि वहां पे आपके बोलने के कारण डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसकी मशीन बंद नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है आपको, है ना। बट यू कैन रिक्वेस्ट, जैसे ये एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए है मोस्ट ऑफ द थिंग, आपके इंटरनल ऑडिटर के लिए भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप केबिन में नहीं बुलाओगे ऑपरेटर को उसकी जगह छोड़ के, आप मशीन पे जाके ही आपको उसका इंटरव्यू करना है। अगर वहां पे नॉइज लेवल ज्यादा है तो आपको कोई क्वाइट प्लेस देख के वहां पे करना है ना। इट शुड नॉट बी कि आप मीटिंग रूम में बैठे और वहीं पे 10 लोगों को बुलाए जा रहे हो आप एक के बाद एक, इट इज नॉट द राइट वे। सो नॉर्मल वर्किंग आवर्स में अगर उसकी शिफ्ट छूटने का टाइम है उसके पहले पूछ लीजिए, शिफ्ट छूटने के बाद अननेसेसरी आप उसको आधा घंटा मत बिठा के रखिए फॉर चेकिंग फॉर द ऑडिट पर्पज। गॉट इट? सो कंडक्ट ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर्स एंड इफ पॉसिबल एट द प्लेस ऑफ वर्क ऑफ इंटरव्यू, इफ पॉसिबल। ठीक है, कभी कभी नहीं होता है पॉसिबल, जहां पे वो काम करते वहां पे नहीं, तो आपको फिर प्रॉपर प्लेस पे बुला के करना है। कीप द इंटरव्यू एट इज, मीन्स कंफर्टेबल रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ फैक्ट शेयर करना है, यू नीड टू कीप देम एट इज, एट अ लेवल ऑफ कंफर्ट, है ना। आपको उनको क्लियर कट, जो नॉर्मली हम करते थे, वी आस्क देम, वी टेल देम बेसिकली कि सबसे पहले तो आप कहाँ पे काम करते हो, कितने सालों से है, अच्छा आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, हम ये क्यों कर रहे हैं, वी नीड टू टेल देम रीजन फॉर इंटरव्यू। आपको उनको बताना है कि वी आर कैरिंग दिस आउट, हम एक इंटरनल ऑडिट करते हैं, बहुत बार नहीं पता रहता ऑपरेटर्स लोगों को, इवन सेक्शन में जो दूसरे लोग काम करते हैं सुपरवाइजर लेवल पे, उनको भी नहीं पता रहता है। तो आपको उनको बताना है कि हमारे पास ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम इंटरनल ऑडिट्स करते हैं, ताकि हमारा जो ये सिस्टम है, काम करने का तरीका है, ये दिन ब दिन अच्छा होता रहे, है ना। वी शुड इम्प्रूव आवर वे ऑफ वर्किंग। और ये इसमें अगर कोई लैप्स है, हमको जब तक ये नहीं पता रहेगा कि इसके अंदर क्या गलतियां है, तब तक हम सुधार कैसे करेंगे। इसीलिए टू फाइंड आउट वेदर देयर आर एनी गैप्स और नॉट, वी आर कंडक्टिंग दिस ऑडिट। और ये ऑडिट के पार्ट में आपका एक इंटरव्यू ले रहे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसका मतलब कतई नहीं कि आपकी गलतियां निकालना, ना ही आप जो बोलोगे उसके बेस पे आपके सीनियर्स आपको डांटेंगे, वो आपको उनको अश्योरेंस देना पड़ेगा। और एक कल्चर भी आपकी कंपनी में होना चाहिए कि उस बेचारे की जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो उसके ऊपर कुछ ना आए, वो आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए। और फिर आप उनको ये भी बताना है कि वो जो आंसर देंगे उसको आप किस तरह से इंटरप्रिट करोगे, क्या रहेगा। तो उनका नाम लेके, उनका नाम, एम्प्लॉय कोड जो भी है, वर्क ऑफ एक्सपीरियंस आपको वहां पे मेंशन करके रखना है एज अ ऑडिट एविडेंस। जैसे मैंने बताया, उनको पूछना है कि आप क्या काम करते हो, कैसे लेते हो, क्या इनपुट लेते हो, क्या आउटपुट रहता है आपका, क्या क्या काम करते हो, तो उनको जस्ट पूछना है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन यू आस्क व्हाट यू डू, हाउ यू डू, फ्रॉम व्हेन यू आर डूइंग दिस, है ना, हु यू रिपोर्ट टू। तो इससे क्या होता है, वो कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा, कंफर्ट जोन में आ जाएगा। और फिर आपके साथ वो एक विश्वास के साथ जो आपका
जो इंफॉर्मेशन है ना, उसका आदान प्रदान होगा एक विश्वास के साथ। जैसे आपको बताया कि आपको राइट टाइप के क्वेश्चन पूछना है, राइट टाइम पे पूछना है, ओपन, क्लोज, लीडिंग, हाइपोथेटिकल, आपको उनको क्वेश्चन पूछने हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली जो भी आपकी फाइंडिंग है उसके बेस पे आपको उनको बताना भी है इंटरव्यूअर को कि देखिए हमने आपसे पूछा, उसके बेस पे हमको ऐसा लग रहा है कि आपको क्वालिटी पॉलिसी के बारे में पता नहीं है, आपको कम्युनिकेट किया गया पर आप अवेयर नहीं हो, तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उसको पता तो चले कि करना क्या है, बाद में तो बताएंगे उसके सीनियर्स, बट अभी आपको क्लियर करना है, ताकि अगर उसके अंदर उसको कोई एम्बिग्विटी रही कि उसको अगर ये बोलना है कि नहीं सर मुझे तो आता है, प्लीज गिव मी अ चांस, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, सो ही विल एक्सप्लेन यू अगेन, देन यू चेक। That's why your understanding should be properly communicated back to the interviewee, so that if there are any gaps between your understanding and his understanding, he can clarify there itself. So you have to give them a chance to defend themselves also, है ना। अगर ये लगता है आपको कि उनके काम करने का तरीका, the way they are saying and the way it is written in the documentation, it is different, तो आपको ये चीज हाईलाइट करना है, उनको बताना है कि यस दिस इज द डॉक्यूमेंट, इट इज रिटन, इट शुड बी डन लाइक दैट दिस, बट यू आर डूइंग डिफरेंटली, व्हाई इट इज सो, ये डिफरेंस क्यों है। तो वो बताएगा कि नहीं, आइदर वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो फिर उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, या तो फिर उनका कार्य करने का तरीका सही नहीं है तो उनको कार्य करने का तरीका सुधारना पड़ेगा। वेयर इज द गैप, यू नीड टू फाइंड आउट एंड देन यू नीड टू रेज द प्रॉपर एनसी अकॉर्डिंगली। एंड आप जब उनको रिजल्ट बताते हो उनके इंटरव्यू का, तब उनको लास्ट में थैंक भी करना है कि यस आपने आपका टाइम दिया, यहाँ पे हम आपके क्वेश्चन पूछने के लिए आपने जो टाइम दिया, जो सहयोग दिया, वी आर थैंकफुल फॉर दैट। तो अल्टीमेटली वो आया कंफर्ट के साथ और जाएगा भी कंफर्ट के साथ। उसके बैक ऑफ माइंड कुछ नहीं रहेगा कि अब मैंने जो जवाब दिया वो सही थे कि गलत थे, अब मेरे साथ क्या होगा, मेरे सीनियर्स मुझे क्या बोलेंगे, ये उसके मन में नहीं रहेगा, है ना। तो जैसी जिस तरह से वो आया था उसको उसी तरह से वापस भेजना है, विदाउट टेकिंग, हाँ जो अच्छी चीजें लेके जाए साथ में, है ना। जो गैप्स आइडेंटिफाइड किया है उनको पता रहना चाहिए कि यस मुझे क्या पॉजिटिवली एक्शन लेना है, उसके साथ जाए, कुछ निगेटिविटी लेके ना जाए, ताकि अगली बार वो डर जाए क्वेश्चनिंग या किसी के आंसर देने के लिए। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ प्रॉपरली यू कंडक्ट द इंटरव्यूज। इट इज नॉट इंटरव्यू फॉर सिलेक्टिंग द पीपल, है ना, इट इज of your understanding your quality management system, but same thing आप जब आप नॉर्मल इंटरव्यूज लेते हो लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, इसमें से कुछ चीजें आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, सो दैट यू गेट टू नो द पीपल वेरी वेल, है ना, नर्वसनेस नहीं आना चाहिए उनमें। दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट। अब हमने जो कुछ पता कर रहे थे, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, वो हमको किस में करना है, कलेक्ट ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट पे करना है, ठीक है। ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट पे हमको इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ऑडिट नंबर क्या था, तो कहां से आएगा, हमारा ऑडिट शेड्यूल, ऑडिट प्लान था, वहां से आएगा। फिर ऑडिटर कौन था, हु वाज द ऑडिटर, मिस्टर सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, मिस सो एंड सो, उनका सेक्शन क्या था। ऑडिटी कौन था, कौन कौन ऑडिटी था। ऑडिटी में इंटरव्यू आप जिनके ले रहे हो उनके नाम नहीं आएंगे, ऑडिटी मींस जिनका वो शेड्यूल में नाम था उनके, ठीक है। बाकी जिन लोगों के आप बाद में इंटरव्यू लेते हो या जो सबऑर्डिनेट्स बैठे रहते साथ में, उनके नाम नहीं है यहाँ पर। इट इज टू बी रिटन एज गिवन इन द शेड्यूल, और अगर वो पर्सन ने तो उनके बिहाफ पे जो कर रहे हैं ऑडिट और करवा रहे हैं ऑडिट, उनका नाम होना चाहिए। देन द डेट ऑफ ऑडिट, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका रेफरेंस क्लॉज या डॉक्यूमेंट, आपने कौन सा क्लॉज नंबर चेक किया, आपका ऑब्जर्वेशन क्या था, फाइंडिंग जो है फिर आपकी पॉजिटिव थी, निगेटिव थी कि ओएफआई थी, वो आपको तब पता चलेगा व्हेन यू कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, योर ऑडिट फाइंडिंग अगेंस्ट द क्राइटेरिया, है ना। ये मैंने भर के रखा हुआ है एक। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने क्लॉज नंबर चेक कर रहे हो आप, जैसे IQA नंबर 1 है, ऑडिटर सो एंड सो फ्रॉम मेंटेनेंस सेक्शन, ऑडिटी सो एंड सो फ्रॉम परचेस सेक्शन, आपने इस तारीख को ऑडिट कंडक्ट किया,
एज पर क्लॉज नंबर 8.4.1 है ना, द इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल प्रोवाइडर आपको 8.4.1 में दिखा हुआ है, 8.4.1 में कि आपको एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स का इवेल्युएशन करना है। तो आप वो चेक कर, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने देखा कि यस इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर कैरी आउट हो रहा है, सो एंड सो इवेल्युएशन के जो रिकॉर्ड्स है वो आपने देखे और वो एविडेंट है। अब आपने 8.4.1 की जो रिक्वायरमेंट है वो देखा आपने, दैट रिक्वायरमेंट इज दैट द इवेल्युएशन ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर नीड्स टू बी शैल बी कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब वो अगर मीट करे रिक्वायरमेंट तो यू आर गिविंग इट अ पॉजिटिव, है ना। नाउ इसी के अंदर अगर कोई इवेल्युएशन के ऊपर बेस पे अगर कोई एक्शन आता है, ओके, उसके ऊपर एक्शन लेना है हमको। अगर कोई फाइंडिंग रहती है कि उसका इवेल्युएशन स्कोर है वो कम है, यू नीड टू टेक द एक्शन। बट आपने उनको जब पूछा कि 12XY या जो भी नाम है, ये जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उनका स्कोर जो है 60 के नीचे है, और एज पर योर प्रोसीजर और एज पर द रिक्वायरमेंट देयर नीड्स टू बी सर्टेन एक्शंस टू बी टेकन। तो क्या आपने एक्शन लिया है? तो नहीं लिया था, तो नाउ इट बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि एक्शन लेना लिखा हुआ है और एक्शन नहीं लिया हुआ है। अब कितने परसेंट के नीचे एक्शन लेना है ये तो ISO 9000 में नहीं दिया है, तो ये कहाँ पे होगा? ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट में, क्योंकि स्कोप में क्या रहता है 9001 प्लस ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट नंबर होगा, फॉर एग्जांपल परचेस, जो भी नाम दिया होगा उसने डॉक्यूमेंट का, 401, 402, 306 या क्वालिटी प्रोसीजर समथिंग समथिंग नंबर, जो भी प्रोसीजर है आप उसका रेफरेंस यहाँ पे देना है अपार्ट फ्रॉम दिस। तो आप दे सकते हो फॉर एग्जांपल क्वालिटी प्रोसीजर नंबर 3, है ना, सिलेक्शन, इवेल्युएशन, सिलेक्शन एंड से परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, वो क्वालिटी प्रोसीजर का नाम है। एंड दिस 8.4.1 वो डॉक्यूमेंट के बेस पे आपने ये चेक किया और आपको मिला है कि उन्होंने अपने ही डॉक्यूमेंट में लिखी हुई चीज को वो ऑनर नहीं कर रहे, उसको ये नहीं फॉलो नहीं कर रहे। जब कोई चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं एज पर द गिवन क्राइटेरिया, इट बिकम्स अ नेगेटिव, मींस इट इज अ नॉन कंप्लायंस। It becomes a you can write the non-compliance also. अब ये पर्टिकुलर प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इट इज अ कॉमन कॉजेस, इट इज अप्लीकेबल टू ऑल। तो आपने चेक किया कि कौन कैरी आउट करता है, आपने पूछा, आपने क्वेश्चन पूछते गए, है ना। जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन यहाँ पर आए आपके, आपने पूछा कि यस आपके यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोवाइडर का इवेल्युएशन करते हो, उन्होंने बोला हाँ, तो कैसे करते हो, क्या करते हो, सब कुछ हो गया। उसमें आपने ये भी क्वेश्चन पूछा कि कौन करता है, तो उन्होंने बोला कि ये सो एंड सो करता है। फिर आपने पूछा कि परचेस असिस्टेंट जो है आपका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटीज क्या क्या है, तो उन्होंने वर्बली बता दिया पर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और आपने परचेस असिस्टेंट को पूछा तो ये जो बता रहे थे आपको और उनका जो वर्जन था वो टोटली डिफरेंट था। इसका मतलब वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपकी जो फाइंडिंग है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी ऑफ परचेस असिस्टेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड। अब ये क्या हो गया, ये नॉन कन्फर्मस हो गया, क्योंकि एज पर 5.3 इट नीड्स टू बी डिफाइंड और उन्होंने डिफाइन नहीं की है वो। देन 7.2 competencies for the purchase assistant has not been determined। आपने फिर उनको पूछा कि इनकी जो competencies है, इनकी जो competence norms है, what are the competence norms और competencies required for position of purchase assistant, तो उन्होंने वो भी नहीं करके रखा हुआ है, तो it becomes a non-compliance again। So this is how you need to go. You started with the external provider, but now you have gone to the purchase assistant, their responsibility and authority, their competencies, है ना। देन एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स का जो इवेल्युएशन करना था, रिवैल्यूएशन करना है, उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन पूछोगे। आप उनको ही पूछोगे कि इवेल्युएशन रिवैल्यूएशन करते हो आप, रिवैल्यूएशन किसके बेस पे करते हो, वो बताएंगे आपको। क्या आपने किया हुआ है, फिर आएगा हाँ या ना। उन्होंने बोला हाँ, प्लीज शो मी, तो शो मी पे चला जाना है, प्लीज शो मी द उसके रिकॉर्ड्स रिवैल्यूएशन के, एंड देन गो थ्रू
सैम्पलिंग 4-5 लोगों के इसके थ्रू जाओगे, प्रॉपर वे पे किया है, गुड, इट इज पॉजिटिव थिंग. अगर नहीं किया हुआ है, इट्स अ नेगेटिव थिंग, मीन्स इट इज अ नॉन कंप्लायंस. सो ए ऑडिट ऑब्जर्वेशन इस तरह से आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो. अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज वन ऑफ द वे. हर एक क्वेश्चन, you are hearing noise. Okay. Sorry. There is one way what we can do. I need to end the meeting now, and you people please join in again. You people leave one by one. I will close the meeting, and we need to join in again. Okay. So I am closing the meeting now, and we will start again. And let's see. Okay.